Audible? Yes, sir, you are audible. Okay. I have forwarded this. Okay. I'll update you, Akshita. Don't worry. I hope so. It's up to you. How may I say? Are you on right track or not? So, okay, come to the part. Last time हमने क्या किया था? अंदाज किया था ना वर्क? Data creation and manipulation. Yes, sir, data manipulation, sir. Okay, wait. I'm just sharing my screen. Now is it visible to all? ये सब कर लिया था हमने. Shape. This one. Okay. Unique columns, unique and unique difference. Data. Include object segregation देख लिया था. Alternate पे देख लिया था. And then dot index. या ये भी देख लिया था हमने. ठीक है. Sir, difference between map, apply map and a transform. यहाँ पे थे हम. ठीक है. Yes. Okay. I have a question that was the difference between continuous data and interval data. Okay. देखो. So let's suppose अगर आप देखो according to the statistics, तो data का segregation होता है basically which is related to the ratio and interval data. But in the data science, you will get the data which is related to the continuous data and the discrete data. So let's suppose अगर आप interval data पे पूछ रहे हो कि what's the difference between the continuous one and the interval data, so means अगर आप continuous data पता है कि कुछ भी मेरे पास ऐसा data है जिसमें मैं 0 से 1 पे अगर jump कर रहा हूँ तो maybe infinite number of possibilities, having infinite number of maybe the data which is 0.1, 0.2, 0.11, 0.22, there is infinite number of possibility. But this data interval which is related to the absolute zero, तो अगर नहीं पता है तो don't worry about this part. The absolute zero is, let's suppose there's a formula. If I want to convert that temperature to the Fahrenheit, है ना, तो अगर मुझे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आई हैव देयर इज अ एब्सोल्यूट जीरो व्हिच इज रिलेटेड टू द 0 केल्विन. तो अगर ये डेटा जो मैं अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट कह रहा हूँ या लेट्स सपोज इफ आई हैव डेटा एनी मे बी सेंटीमीटर टू मीटर, मे बी इंचेस टू फुट, इफ आई हैव दैट काइंड ऑफ डेटा जहां पे मैं कोई एब्सोल्यूट जीरो यानी मीन से दैट उसके बीच की कोई स्पेशल स्टैंडर्ड यूनिट को सिग्निफाई कर सकता हूं, देन आई कैन से दैट डेटा विल बी रिलेटेड टू द इंटरवल डेटा. ठीक है, तो जैसे आप कोई भी टेम्परेचर कहते हो रेंजेस देते हो ना टेम्परेचर का, क्या दैट 16 टू 24 डिग्री सेल्सियस, या फिर लेट सपोज अगर मैं कहीं दो लैटिट्यूड्स का बात कर रहा हूँ तो मे बी देयर टेम्परेचर मे बी -4 डिग्री एंड हेयर इज 6 डिग्री. So there is absolute zero. ठीक है, that's a absolute zero which is known as Kelvin of data. Again centimeter to meter. तो जहाँ पे हम standard units की बात करते हैं तो especially in the statistic, it is not for the data science. Data science में आपको interval data का ज़्यादा bother नहीं करना पड़ता. You have to just focus on the continuous data. And let's suppose if you are working on the statistic, then you can say, okay, any data which is related to kind of a standard unit and having any absolute zero value, then you can say that data will be related to the interval kind of data. Got it? तो ज्यादा बॉदर नहीं हो, बस ये समझो कि इंटरवल डेटा वो है जो भी कोई स्पेसिफिक यूनिट्स में एक विद इन रेंज के अंदर वर्क करते हैं, यानी मीटर टू सेंटीमीटर, इंच टू फुट, और मे बी केल्विन टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर. ठीक है, तो ये सारे डेटा कैसा होता है, इंटरवल काइंड ऑफ डेटा होता है जहां पे कोई भी एब्सोल्यूट जीरो आपके पास कोई स्पेशल, जैसे वेट हो गया. ठीक है, वेट में केजी टू पाउंड में जा रहे हो या कोई पीएसआई यूनिट्स हो गई, तो ऑल द डेटा विच इज रिलेटेड टू द इंटरवल. बट डेटा साइंस में आपको जो डेटा मिलेगा वो कॉन्टिन्यूस डेटा मिलेगा. बहुत पहले वर्क किया जाता था, दैट्स अ इंटरवल डेटा. स्पेशली ये कहाँ वर्क किया जाता है, आई विल टेल यू, इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स.
पहले स्टैटिस्टिक्स ना सर्विस यूनिट में नहीं थी. Generally those companies who are dealing in the manufacturing, they used to cater with the statistic kind of things. But nowadays you can see every process is going to be digitization, and today the boom of service industry, that's why they are also adopting that stat part in their own processes. So that's why usme kuch processes aa gaye, to then you can just simply concentrate on the continuous data, no need to bother about the interval. Okay, got it Muskan? Yes, sir. But my question was that continuous data, how it is different from interval data? मतलब ये तो दोनों सेम ही हो गए ना, बस इंडस्ट्री का फर्क हो गया. That's right, yeah. है ना? There is another difference is that that's a absolute zero. Means आप absolute zero को देखो, ये जो है वो chemistry और physics का term है, absolute zero. So don't worry about these, कि both the data are the same. You just simply can say both the data are same. There is nothing difference in it. Let's suppose अगर आप इसे भी 40.2 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हो, तो whether is data is continuous, yes, this data is also continuous. But इस डिग्री यूनिट की वजह से इसमें एक एब्सोल्यूट जीरो है, आई कैन से, है ना, क्योंकि मे बी इज द केल्विन काइंड ऑफ यूनिट, तो मैं इसे एब्सोल्यूट जीरो पे ले जा सकता हूँ. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस. बस यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता. गॉट इट? Yes, sir. ओके. सो मैंने लास्ट टाइम कोई असाइनमेंट दिया था ना स्टैट से रिलेटेड, दिया था या नहीं दिया था? मुझे रिकॉल हो रहा है दिया था मैंने. नहीं, लास्ट टाइम भी नहीं दिया था. आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक दिया था. लास्ट वीक नहीं दिया था शायद मैंने, लास्ट टू लास्ट वीक दिया था. So you gave it last week only on Saturday. ओके 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 ओके. तो किया सबने वो? किया या नहीं? सर आपने जो रिकॉर्डिंग डाली हुई है स्टैट्स की, उसके अंदर वो क्वेश्चन था नहीं, and couldn't recall that question. सेट ना ना, अब आपने सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग डाली हुई है स्टैट्स की. ना, मैं तो पंडास में जब कल लास्ट वीक पढ़ा रहा था तब पूछा था ना वो क्वेश्चन. सर लेकिन वो क्वेश्चन तो आपने मतलब उसमें पूछा था ना, क्लास में पूछा था ना, रिकॉर्डिंग में नहीं था. जी टेस्ट, टी टेस्ट, हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन था. लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड नहीं किया क्या? एक मिनट बेटा, आई हैव टू चेक फर्स्ट. लास्ट का मैंने अभी ना, ओके, दैट्स द गेम डेवलपमेंट एंड देन डेटा क्रिएशन. ओके, अच्छा, ये पास्ट रिकॉर्डिंग से आपका डेटा क्रिएशन मैंने प्ले. यस सर. ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा लास्ट वीक का. ठीक है, थैंक यू सर. ओके. तो क्वेश्चन याद ही नहीं रहा फिर, यानी वो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं है? यस सर, आई वाज वाचिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टैट्स अभी दिस वीक. अच्छा, चलो. बिकॉज़ आई हैड मिस्ड द क्लासेस ना. किसी को, किसी और को याद है वो क्वेश्चन क्या था वो? या एनीवन, किसी और ने सॉल्व किया? मैंने सिंपल ये क्वेश्चन पूछा था कि यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन फॉर द जी टेस्ट इन द टी टेस्ट. देयर इज अ कंडीशन फॉर द जी टेस्ट इज दैट क्या sample size should be greater than 30 and you have to know about the standard deviation of the population. So you have to perform the G test, and let's suppose if the sample size is less than 30 and you don't know about the standard deviation of the population, then you have to perform T test. So आपको एक ऐसा function बनाना है basis on the sample size. Your Python will automatically tell which test you have to perform, whether you have to go for the G test or the T test. And let's suppose if the sample size is less than 30, then you have to perform T test, and in this particular condition you have to calculate the standard deviation of the sample. Then you have to apply the formula and then आपको calculate करना है. चलो, let's see, maybe this is the question. ठीक है, अब याद, maybe it's your own call. वो मैंने इसलिए दिया था, there is a part reason is behind the, let's suppose शायद Python से काफी दिन core part को नहीं touch किया होगा. So that's why you can recall lots of the concept which is related to the exceptional handling, which is related to the defining of the function. तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर स्क्रिप्टिंग फंक्शंस हो तभी आप पाइथन पे वर्क करो, है ना.
apart from that you can define your own things. If you really good on Python then you can do anything. Now come to the topic, वो शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक पंडास पढ़ा, पंडास के अंदर हमने डेटा क्रिएशन पे पढ़ा कि पंडास में हम सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। लेट सपोज मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, कुछ ड्रॉप करना है कॉलम, वो कैसे ड्रॉप करता हूँ, या फिर मुझे रीसेट इंडेक्स करना है वो कैसे कर सकता हूँ, कोई कॉलम को सेट इंडेक्स करना है वो कैसे कर सकता हूँ। देन ग्रुप देखा हमने, ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं, मर्ज का हेल्प यूज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, हम कंकैटिनेट कर सकते हैं हमने डेटा फ्रेम को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ डेटा मैनिपुलेशन में देखा, डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद कुछ मैनिपुलेशन यानी डेटा की कुछ इंफॉर्मेशन चेक करी कि डेटा है कैसा, कैसा फीचर्स हैं, क्या है फीचर्स उसकी, ठीक है। फिर हमने कुछ डिस्क्राइब में समरीज देखी, उसकी क्या मैथमेटिकली क्या उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्या हम समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर समरी से, ठीक है, ये सब देखा। अगर कैटेगोरिकल है तो इंक्लूड ऑब्जेक्ट करना पड़ता है डिस्क्राइब में, ये सब देखा हमने। डेटा को सेग्रीगेशन करना देखा, लेट्स सपोज इफ यू हैव द डेटा इन योर डेटा हैविंग numerical feature and the categorical, then how to segregate your data into the two parts, that's a very important, we will see later, ठीक है, in the visualization part। ये सब देखा हमने। कुछ ये देखा कि लेट्स सपोज मुझे कुछ यूनिक वैल्यूज देखनी अपने फीचर्स में तो मैं ये देख सकता हूँ, मुझे कुछ वैल्यू काउंट्स देखने हैं वो देख सकता हूँ, कितने, अगर मुझे एनी यूनिक देखना है वो देख सकते हैं। तो हमने ये सब देखा। इस नल डॉट सम देखा हमने, क्या मेरी लेट्स सपोज कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं पर्टिकुलर फीचर में, देन आई विल जस्ट make my percentage or I'll just calculate the percentage of the missing values which is present in my feature also, ये भी कर सकते हैं। as well as we can see the indexes value where the missing values is present with respect to the particular row, ठीक है, और corresponding to the, या मुस्कान, yes, हेलो yes सर, माय क्वेश्चन वाज लाइक हमने पिछली बार डिस्कस किया था एसक्यूएल के बारे में, लाइक अगर हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, ठीक है, एंड एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है एंड एक डेटा फ्रेम में अभी बना रही हूँ, ठीक है, एंड एक कॉलम में जो डेटा है वो ऐसे है कि जैसे मेरे को दूसरे डेटा फ्रेम से कुछ डेटा लेके उसे मैनिपुलेट, जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर कुछ भी उस पे ऑपरेशन करके फिर अपने नेक्स्ट डेटा फ्रेम में लाना हो, तो ये पॉसिबल है पाइथन में? एक मिनट मुझे पागल से लेट्स, आपका डेटा कहाँ पे, आपके डेटाबेस सीक्वल पे है, ठीक है, लेट्स सपोज, और नहीं, सीक्वल पे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे हम सीक्वल पे कर सकते हैं, क्या सेम चीज हम पाइथन में कर सकते हैं पांडास के थ्रू? हाँ, वही क्या करना चाह रहे हो आप ये बताओ मुझे। आपका जो डेटा है अभी वो डेटाबेस पे है, ठीक है, आप क्वेरीज लगा रहे हो, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मैं वही सेम वर्क करना चाहती हूँ पंडास पे। क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। मेरा, हाँ मैं बताती हूँ, दो डेटा फ्रेम है मेरे पास, ठीक है, एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है और कहाँ पे बना हो, डेटाबेस पे है ना आपके, ऑलरेडी डेटाबेस पे है, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है, चलो उसमें मैंने कुछ एक इस तरह से फीचर ले लिया, नेम, हाइट एंड वेट, ठीक है, चलो मेरे पास ये फीचर है। दूसरा डेटा आप बना रहे हो, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? उसके फीचर्स मान लो मैंने नेम डाल दिया, नेम डाला एंड उसके अंदर मैंने हाइट, जो मैंने हाइट डालनी है ना वो डबल करके डालनी है, या फिर मतलब, हाँ मतलब उसमें कुछ ऑपरेशन करके डालना है वो ऑपरेशन, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप डेटा 2 बना रहे हो तो बेसिस ऑन दिस डेटा यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू डेटा, और दिस इज द एब्सोल्युटली न्यू डेटा, this is absolutely new data, but I will create this data on the basis of data 1. so means is that ये data new नहीं हुआ ना, you are just creating the data basis on the old data. So let's suppose you are just doing manipulation means is that let's suppose अब इसमें मेरे पास नेम नहीं था, so you are just including the name feature in the data 2 as well as you are just doing manipulation in terms of the height column. तो आप क्या कर रहे हो, डबल ऑफ हाइट कर रहे हो। डेटा फ्रेम 2 में चाहिए, जैसे मान लो हाइट की जो वैल्यू है वो नेम के अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम 2 में आ गई, लेकिन जो डेटा फ्रेम 2 में आई ना वो मल्टीप्लाई बाय 2 होकर आई, मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होकर आई, तो वो पॉसिबल है? हाँ, सब कुछ पॉसिबल है, इवन ये तक पॉसिबल है, ये तो इट्स इजी। लेट्स सपोज इफ यू हैव द डेटा फ्रेम एंड इन द डेटा फ्रेम एज, हाइट एंड वेट, ठीक है। देखो मैं बस एक चीज बता देता हूँ आपको, आपका जो सीक्वल का यूज है ना, दैट्स अ सीक्वल, आई डोंट नो अबाउट हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द ETL पार्ट, दैट्स अ ETL पार्ट इज दैट, लेट्स सपोज मेरे पास, आई डोंट नो, यस प्लीज, नो सर, आई डोंट नो, आई थिंक आई डोंट नो ETL. ओके सो ETL बेस मैं बता देता हूँ उसका, ठीक है, बाद में हम देखेंगे ये सब। सीक्वल, लेट्स सपोज यू आर सिटिंग इन USA, आई एम सिटिंग इन इंडिया,
ठीक है, और एक ही कंपनी है हमारा, लेट्स सपोज द कंपनी में भी ABC कंपनी, ठीक है, हम दोनों के सेम प्रोडक्ट है, कंपनी यूके में स्टैब्लिश है, कंपनी का एक कॉर्पोरेट ऑफिस है यूएसए में, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे कुछ ए सेल करा आपने, मैंने बी सेल किया। अब ये दोनों डेटाबेस क्या है मेरे पास, मेरे वेयर हाउस पे, लेट्स सपोज SQL के वेयर हाउस पे दोनों डेटाबेस यहाँ पे ए और बी। अब या तो मैं क्या करूं, इसी पे अपनी क्वेरी इंसर्ट कर दूं। अगर मैं इस पे अपनी क्वेरी इंसर्ट करता हूं तो ये क्या करेगा, मेरे जो ए और बी के डेटाबेसेस हैं जो इसको एक्सेस कर रहे हैं वो स्लो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं उसके वेयर हाउस पे क्वेरी इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, क्या एक ETL टूल क्रिएट करूंगा, ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो आप ये पाइथन के थ्रू कर सकते हो, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनीज यूज करती हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिका हो गया, टैलेंटेड हो गया, दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये यहाँ पे अगर मुझे बी पे कुछ क्वेरी करनी है, या लेट्स सपोज बी पे मेरे कुछ आईफोन सोल हुए और ए पे आईफोन हुए, अब मुझे देखना है कि दोनों में से सेल किसकी थी ज्यादा, तो इसका भी एग्रीगेशन चाहिए, इसका भी एग्रीगेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये ना लगा के, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल अपने डेटाबेसेस पे वर्क कर रहे हैं, मैंने ये डेटा वेयर हाउस से डेटा उठाया ए और बी का, और यहाँ पे अपनी क्वेरी लगाया, और यहाँ पे क्वेरी लगा के मैंने उसे क्या करा, सॉल्व किया। तो ये पाइथन से मैंने क्या किया, इस डेटाबेस से कनेक्ट किया, इस डेटाबेस से कनेक्ट किया। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप सीधे वेयर हाउस से कनेक्ट करो, वेयर हाउस में जो एक डेटाबेस है उसका टेबल लो और बी का टेबल लो, दोनों को टेबल का डेटा को लो अलग अलग, और उस पर आप जाके वर्क कर सकते हो। या फिर आपने कहा कि लेट्स सपोज यूएसए का मेरे पास 6 मंथ्स का डेटा है, वो कैसे है, क्या चला, फैब मार्च अप्रैल मई, ठीक है, और मेरे पास इसमें भी डेटा है। अब ये इसमें अलग अलग मंथली डेटा है, इसमें भी अलग अलग मंथली डेटा है, तो क्या मैं इसको भी रीड कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली आप इसको भी रीड कर सकते हो, और इन चारों डेटा को एक डेटा में मर्ज भी कर सकते हो। यू कैन मेक अ वन डेटा ऑल्सो, सिमिलरली यू कैन मेक वन डेटा ऑल्सो, और फिर इन दोनों डेटा को भी आप एक डेटा बना सकते हो। यू कैन मर्ज, यानी मेरे पास यूएसए का डेटा आ गया, इंडिया का डेटा आ गया, जो अलग अलग मंथली वाइज था, मैंने उसे क्या किया, हाफ ईयरली में पहले मर्ज कर लिया, यूएसए का, इंडिया का भी मर्ज कर लिया। ये सब पाइथन में कर सकते, मैं करवाऊंगा ये सब आप सबको, डोंट वरी। और फिर उसके बाद इन दोनों डेटा को भी मर्ज कर लिया मैंने, इन दोनों डेटा को मर्ज करने के बाद फिर एक डेटा फ्रेम मेरे पास बन के आ गया। नाउ यू कैन डू एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इन द पंडास। आपको एग्रीगेशन फाइंड करना है, आपको यूएसए का टोटल सेल फाइंड करना है, आपको इंडिया का फाइंड करना है, आपको यूएसए का फाइंड करना है, यू कैन डू एनीथिंग। द वन थिंग आपको रिक्वायरमेंट है, क्या है, जो डेटा क्रिएशन है। डेटा क्रिएशन, द रीजन इज बिहाइंड दैट, अब पाइथन पे डेटा क्रिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों, मेरी कंपनी है ABC, इसका एक ब्रांच बेंगलुरु में है, एक ब्रांच नोएडा में, लेट्स सपोज हमने अभी ओपन किया। अब जो बेंगलुरु का डेटा है, ठीक है, और नोएडा का डेटा है, डेफिनेटली मुझे कहीं तो रखना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्लाउड ले लिया, क्योंकि अब मैं फिजिकल सर्वर तो लूंगा नहीं, और फिजिकल सर्वर का एक्सेस दूंगा नहीं, कि अब फिर मुझे यहाँ भी एक सर्वर रखना पड़ेगा फिजिकल, यहाँ भी सर्वर रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ABC को क्या करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं बेंगलुरु में, बेंगलुरु से फिर हम और स्टेट्स में रन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक क्लाउड लिया, इस क्लाउड में मैंने एक सर्वर, 2 सर्वर लिए, ठीक है। अब ये एक सर्वर को नाम दे दिया X, एक सर्वर को नाम दे दिया Y, दोनों। तो बेंगलुरु का डेटा मैं X पे रख रहा हूँ, नोएडा का डेटा मैं Y पे रख रहा हूँ। अब लेट सपोज मुझे दोनों में कंपैरिजन करना है, तो मैंने पाइथन से क्या कहा, क्या मुझे ये जो सर्वर है आपका वेयर हाउस है, मुझे उसमें एक्सेस चाहिए। मैंने पाइथन को रिक्वेस्ट करी, ठीक है, पाइथन ने मुझे रिक्वेस्ट करके मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश किया। वो देखो, वो विच इज ऑल अबाउट यूजर नेम, आपको यूजर नेम मिलता है जब भी आप ऐसा करते हो, दैट्स अ काइंड ऑफ रूट। देन आपको फिर अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, तब जाके एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। देन उसके बाद आपको फिर बताना पड़ेगा उसे, क्या आप कहाँ पे किस डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो। लेट सपोज ये डेटाबेस है AI, तो आपको AI डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके आपका पाइथन का यहाँ पे क्रिएट इंजन बोलते हैं उसे, तब जाके वो स्टैब्लिश होगा। और फिर जैसे ही स्टैब्लिश हो गया, देन अब यहाँ इस डेटाबेस से जो भी डेटा है यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इस डेटाबेस से उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, दिस इज E।
उसके बाद मैंने अपने पाइथन पे लिया दोनों डेटा को ट्रांसफॉर्म किया बेस्ड ऑन योर ओन काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, और वॉट एवर यू वांट टू डू एनीथिंग। पाइथन का पंडास का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि वो पाइथन में आप उसे वर्क कर रहे हो। इन द पाइथन यू कैन डू एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन अगर आपको कोडिंग आता है। जो आप चाहते हो बस डेटा आपके पास आना चाहिए, आप उस डेटा का शायद 360 ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। देन ट्रांसफॉर्म किया। अब आपने कहा कि ये डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे दोबारा डेटाबेस में भी भेजना है, और किस डेटाबेस में भेजना है, लेट्स सपोज एक्स में भेजना है ट्रांसफॉर्म करके। तो आप एक्स में भी वो डेटाबेस बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में भेज सकते हो। देखो रीजन, आई विल टेल यू वन थिंग, टुडे देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इज दैट कंपनीज ने बहुत सारी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही कह रहा हूँ या आई एम जस्ट एडमायरिंग माई सेल्फ, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कंपनी की जो प्रोसेसेस थी ना वो उन्हें सीक्वल पे यूज टू हो चुकी हैं वो, और वो नहीं चाहती कि हम उसको स्विच करें। इसीलिए सीक्वल का आज कोई यूज नहीं है, मेरे लिए कोई यूज नहीं है। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं बट बस इसलिए मुझे यूज आता है, तो जो पहले करता था अब नहीं करता मैं, इसलिए क्योंकि मेरा डेटा क्लाउड पे है और वो सर्वर मुझे चाहिए जहां पे वो इस तरह से मैं उसे अपने डेटा को लोड कर सकूं, बस। और कोई मुझे यूज सीक्वल का मैंने आज तक नहीं किया। क्वेरीज बहुत पहले करते थे जब हम पाइथन को इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, बट आज कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, जैसे डिलॉयट जैसी कंपनी है वो आज भी पता नहीं क्यों रिलीजियसली, या फिर EY भी, एंड इवन KPMG ऑल्सो, जितनी भी ये एनालिटिक्स कंसल्टिंग कंपनी है, दे आर रिलीजियसली फॉलोइंग सीक्वल। आई डोंट नो व्हाई दे आर रिलीजियसली फॉलोइंग, बट हाँ वो कर रही है, मुझे नहीं पता, ठीक है। द रीजन, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट आई डोंट नो, बट यस आप कुछ भी प्रॉब्लम दोगे वो प्रॉब्लम मैं पाइथन से सॉल्व कर सकता हूँ, बट मुझे बस एक्सेस चाहिए आपके डेटाबेस का। अब आपके डेटाबेस में कोई कहेगा कि मेरे डेटाबेस, लेट सपोज जैसे ये था AI डेटाबेस में आपके पास 13 टेबल्स हैं, तो अब वो कोई कहेगा आपसे क्या ना कि 13 टेबल है तो क्या 13 बार डेटा को लोड करोगे बार बार पाइथन में? नो, मुझे बिल्कुल भी ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लूप्स पे वर्क करना आता है। मैं अपने कनेक्शन से स्टैब्लिश करके देयर इज अ कमांड टेबल अंडरस्कोर नेम्स, मेरे डेटाबेस में जितनी भी टेबल होंगी की एक लिस्ट मुझे दे देगा, मैं उसमें आइटरेट करूंगा और डेटा को कंकैटिनेट करते करते मैं अपना एक डेटा फ्रेम भी कर सकता हूँ। यानी जो आप सीक्वल में नहीं कर सकते वो काम यहाँ पे भी कर सकते हो। तो दैट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज, ठीक है। और ये सब करने वाले हम, डोंट वरी, ये सब करेंगे हम लोग। यस मुस्कान। बट सर अब आपको पाइथन में डेटा एक्सेस करने के लिए डेटा भी तो चाहिए होगा, वो डेटाबेस में डेटा जाएगा वो तो सीक्वल के थ्रू ही जाएगा ना। हाँ हाँ, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, बस डेटा सीक्वल का वर्क क्या है, सिर्फ डेटा क्रिएशन वर्क है। हाँ डेफिनेटली क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल ना इन द पाइथन। क्या आप, मैंने अभी बताया ना शुरू में, क्या मेरा क्लाउड है, क्लाउड पे जो डेटा पड़ा है बेंगलुरु और नोएडा का, वो पाइथन पे क्रिएट नहीं हो सकता ना, वो सर्वर पे ही क्रिएट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप डेटा जो क्रिएशन है वो वहां पे है, बाकी और मुझे कोई यूज नजर नहीं आता, क्योंकि मैं ETL पे वर्क करता हूँ। ETL पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो, जो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे ENY, आई थिंक इन्फॉर्मेटिका या टैलेंटेड में से कुछ एक करता है ETL, लेकिन करता है ENY। और KPMG इन्फॉर्मेटिका यूज करती है। डिलॉयट का मुझे पता नहीं, डिलॉयट शायद सीक्वल ही यूज करता है रिलीजियसली क्वेरीज के लिए भी, क्योंकि वो आज भी डेटा एनालिटिक्स सीक्वल पे कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, उसका प्रोसेस मुझे नहीं पता क्यों वो इतना रिलीजियसली सीक्वल पे कर रहे हैं, बट आप पाइथन पे एफिशिएंटली ज्यादा कर सकते हो सीक्वल के कंपैरेटिवली। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि डिलॉयट गलत है या ENY या KPMG या वट एवर द कंपनीज आर जस्ट डूइंग देयर प्रोसेस, नो। बस मेरे लिए क्या है, इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली जो आपने कहा डेटा क्रिएशन तो डेटा बेस पे ही होगा, वो कोई और ऑप्शन नहीं है। अब उसके लिए आप नो मोंगोडीबी नो सीक्वल ले सकते हो, या सीक्वल ले सकते हो, या फिर आजकल हम लोग बिग डेटा विच इज हडूप यूज करते हैं, ठीक है। फॉर बिग डेटा जैसे वीडियोस करनी है मुझे, इमेजेस करनी है, ठीक है, जो मे बी साइज ऑफ MBs, वन इंडिविजुअल साइज of image or maybe videos which is maybe GBs,
तो मैं यहाँ SQL या इस पे नहीं कर सकता, ठीक है। नो SQL पे मैं इमेजेस कर सकता हूँ, नो SQL पे मैं इमेजेस को स्टोर कर सकता हूँ, जैसा बाइनरी फॉर्मेट, वो वहाँ बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है। SQL में वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कर सकते हो तो मुझे बताना, मुझे SQL का नहीं पता इमेजेस के लिए, क्योंकि मैं नो SQL ही यूज करता हूँ। अब तो हम लोग वो भी नहीं करते, Hadoop यूज करते हैं अगर जरूरत पड़ता है हमें तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्रिएशन, हाँ क्रिएशन का आप कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि आपको डेटाबेस चाहिए। क्रिएशन होने के बाद जो एनालिसिस का पार्ट है, जैसे आप SQL पे क्वेरी करते हो कि लेट सपोज आपको वो डेटा चाहिए या वही रो चाहिए जिसमें एज ग्रेटर देन 5 है, तो आप वेयर क्वेरीज लगाते हो, ऑर्डर क्वेरीज लगाते हो। वो सारा वर्क अगर आपको SQL आता है, इट्स रियली गुड। अगर नहीं आता है तो वो सारा वर्क आप पाइथन पे भी कर सकते हो पंडास की हेल्प से। पंडास की हेल्प से मैं ये कह रहा हूँ कि पंडास देखो लिमिटेड है, रीजन इज बिहाइंड दैट पंडास इज ऑल अबाउट द स्क्रिप्टिंग थिंग, बट इफ यू नो पाइथन देन यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो पाइथन में, ठीक है। अभी हमने मे बी मुस्कान, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट दिस थिंग, द रीजन इज बिहाइंड दैट क्योंकि अभी पंडास इज गोइंग ऑन, ठीक है। जैसे ही वो वहां पहुंचेगा, जब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कुछ भी किया जा सकता है। एनी ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम, आपने कहा कि मुझे लेट्स सपोज मेरे पास डेट है, मैं उसमें से मंथ भी निकाल सकती हूँ, हाँ यू कैन फाइंड मंथ के अलावा आप ये भी देख सकते हो कि उस 27, जैसे आज टुडे है 5/2/2022, मुझे नहीं पता डे कौन सा है, ठीक है, लेट्स सपोज आपको भी नहीं पता। अब ये आपने कहा कि मुझे पाइथन की हेल्प से इसमें डे पता करना है, हाँ यू कैन फेच डे आल्सो, you and basis on the day you can create a new column in the existing data frame or in the new data frame also। तो आप एक नया डेटा फ्रेम भी बना सकते हो जिसमें आप डे भी निकाल सकते हो, टाइमिंग निकाल सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग एनीथिंग, कोई लिमिटेशन नहीं है पाइथन पंडास का। गॉट इट? यस सर। चलो, तो अभी हम यही करने का कोशिश करें कि कैसे ये सब किया जाएगा, जो अभी हम बात कर रहे थे वो कैसे किया जाएगा। बाकी अगर लेट सपोज अगर आपको SQL वाला पार्ट सीखना है तो मैं एक प्रोजेक्ट आपको करा दूंगा जिसमें यही जो हमने अभी किया था ना, क्योंकि मेरे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का डेटा आया था, मे बी 3 इयर्स पुराना, वो बहुत 3 साल पुराना डेटा है, ठीक है। तो वो रियल टाइम डेटाबेस पे आज भी मेरे डेटाबेस पे पड़ा है। तो वहां से मैं बता दूंगा कि कैसे आपको फैच करते हो, फैच करने के बाद फिर कैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, इंटीग्रेशन करने के बाद फिर कैसे लूप क्रिएट किया जाता है कि मेरे पास अगर 12 फाइल्स में वो डेटा है, उसको एक फाइल क्रिएट करके कैसे पंडास में मैं रीड करूंगा, रीड करने के बाद फिर कैसे मैं और मैनिपुलेशंस उसमें करूंगा। दैट्स अ डेटा व्हिच इज रिलेटेड टू द एसोसिएशन। जैसे आपने देखा ना कि आप Amazon पे जाते हो, लेट्स सपोज यू आर बाइंग आईफोन, तो आपके पास एयरपॉड्स अपने आप ही आपके रिकमेंडेशन में आते हैं, या फिर चार्जर रिकमेंडेशन में आता है, या फिर डेटा केबल रिकमेंडेशन में आता है। तो वो जो रिकमेंडेशन है वो किस बेसिस पे है ना। तो इसी तरह दैट्स अ काइंड ऑफ डेटा साइंस बिहाइंड इट व्हिच इज रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द ओरिजिनल प्रोडक्ट और विद द पेरेंट प्रोडक्ट। तो इसी तरह इसके पीछे स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो वी विल डू दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आल्सो, तो वो पूरा आपका पाइपलाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे एक बार रिकॉल कर देना जब हमारा पंडास एंड विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी कैन डू दैट काइंड ऑफ पार्ट, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलो, नाउ कम टू द टॉपिक। नाउ डिफरेंस बिटवीन मैप, अप्लाई मैप एंड ट्रांसफॉर्म। ये 4 चीजें हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ही पॉपुलर, दैट्स अप्लाई, क्योंकि आप अप्लाई से सब कुछ कर सकते हो जो इनसे नहीं हो सकता, हाँ वो भी कर सकते हो। थोड़ा डिफरेंस है, बहुत सटल डिफरेंस है अप्लाई मैप एंड अप्लाई एंड ट्रांसफॉर्म एंड अप्लाई में, और मैप और अप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं ये यूज क्यों करना है हमें। अब लेट सपोज मेरे पास एक कॉलम है एंड दैट्स अ एज एंड हाइट, ठीक है, ये कॉलम है मेरे पास। अब मुझे इससे एक नया कॉलम बनाना है एंड द कॉलम विच इज रिलेटेड टू द एज। अगर किसी का एज 20 to 25 के बीच में है तो उसे कोई एक सेक्शन दे दो, अपर, और आई कैन से यू, एंड 26 to 30 है देन यूएल। इस तरह से कुछ इस तरह में न्यू फीचर बनाना है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 by 1 आइटरेट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, वैल्यूज को चेक करने के बाद फिर यहाँ पे मुझे उस लॉजिक लिखना पड़ेगा। मैंने कहा फॉर आई इन एज चेक करो इफ दैट पर्टिकुलर इज बिटवीन टू दिस 20 टू दिस वन, अगर ऐसा है तो फिर उसके ए ऑफ आई में जाओ एंड देन इंसर्ट दैट वैल्यू दैट वन, है ना। एक नया फीचर यहाँ पे बना के मुझे ऐसे वर्क करना पड़ेगा, एक एक करके आइटरेशन। अगर आपको ध्यान हो तो एक बार आपने क्वेश्चन पूछा था, तो हमने उसमें क्या किया था, एक लूप क्रिएट किया था इसी तरह से, तो वो वैल्यूज को जाके 1 by 1 इंसर्ट कर रहा था न्यू फीचर में। अगर यही वर्क इतना बड़ा है तो लेट्स सपोज क्या मैं इसे शॉर्टकट में कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे हैं हम 1 by 1 आइटरेट करके फिर वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है क्या हमें आइटरेट नहीं करना पड़े और वो खुद ही जाए, इस पे जाए, चेक करे, हाँ ये है, अपने आप ही जाए चेक करे, है तो यहाँ पे यूएल दे दे, ये जाए चेक करे, यानी हमें आइटरेशन नहीं करना पड़े बार बार। तो ये अगर आइटरेशन नहीं करना पड़े तो देयर इज अ ब्रेजिंग। ब्रेजिंग मींस मेरे पास एक फीचर था हाइट, मैंने कहा अप्लाई, एक कंडीशन दी और यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना दिया इफ एंड एल्स का। अगर इफ है, अगर ये इसके बीच में तो रिटर्न कर दे क्या, यूएल, अगर एल्स रिटर्न कर दे एल। ठीक है, इस तरह से कोई फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन हमें पता है क्या है, फॉर लूप नहीं है, आइटरेट नहीं कर सकता, एक ही बार वर्क करेगा, बट अप्लाई क्या करेगा, इसकी हर एक वैल्यू पे जाएगा, इस फंक्शन पे चेक करेगा, देखेगा और उसे रिटर्न करके उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फीचर पे, जैसे मैंने कहा डीएफ ऑफ न्यू हाइट फीचर बनाया इक्वल्स टू रख दिया। ठीक है, तो न्यू हाइट के उस पर्टिकुलर रो पे गया, हाइट पे देखा ओके 20 है डेटा, 21 31 32, तो ये गया 20, ओके चेक किया इफ दिस डेटा इज लाइज बिटवीन 20 to 25, यस रिटर्न कर दे यूएल। किस पे नया फीचर बनेगा, देयर इज अ हाइट एंड देयर इज अ न्यू हाइट, तो ये यहाँ पे यूएल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ब्रीजिंग करने, यानी हमें अब फॉर लूप को क्रिएट नहीं करना। तो दैट्स अ काइंड ऑफ पर्पस टू यूज अप्लाई मैप एंड ट्रांसफॉर्म। अब इनके बीच में एक सटल डिफरेंस है, छोटा छोटा डिफरेंस है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अप्लाई इज यूज्ड टू अप्लाई अ फंक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द डेटा फ्रेम और द वैल्यू ऑफ सीरीज। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि डेटा फ्रेम है, तो इस डेटा फ्रेम, पूरे डेटा फ्रेम पे भी आप अप्लाई यूज कर सकते हो, या फिर एक सीरीज यानी एक फीचर के लिए भी आप अप्लाई यूज कर सकते हो। यानी कोई अगर लेट सपोज मैंने कहा एक फीचर मुझे बनाना है या नया डेटा फ्रेम बनाना, वो क्या मैंने कहा इसके स्क्वायर रूट के बराबर बनाना है, यानी हर एक फीचर का स्क्वायर रूट होता जाए और वो क्रिएट होता जाए। या फिर मैंने कहा एक फीचर के अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है और वो एक फीचर नया क्रिएट हो जाए, स्क्वायर रूट होके हो जाए या ट्वाइस होके हो जाए, तो दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग आई सिंपली यूज अप्लाई। यानी मैं पूरे डेटा फ्रेम पे भी यूज कर सकता हूँ और सीरीज पे भी यूज कर सकता हूँ। सीरीज मींस एक पर्टिकुलर फीचर। अप्लाई मैप इज यूज्ड टू अ फंक्शन टू अ डेटा फ्रेम एलिमेंट वाइज, यानी डेटा फ्रेम पे वर्क करता है ये। ठीक है, और कैसे वर्क करता है, एलिमेंट वाइज। तो हम इसे देखेंगे क्या है ये एलिमेंट वाइज का मतलब क्या है, वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है अप्लाई और अप्लाई मैप का। ठीक है, छोटा सा चेंज होता है, जैसा काइंड ऑफ अगर मुझे हर एक जैसे 2.662 ये वैल्यू है, इस वैल्यू के एलिमेंट पे भी वर्क करना है तो मैं वहां पे सिर्फ अप्लाई मैप यूज करता हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। देन मैप इज टू सब्स्टिट्यूट ईच वैल्यू इन अ सीरीज विद अनदर वैल्यू, यानी मैप क्या करेगा, मैं मैप पे सिर्फ एक सीरीज पे ही वर्क कर सकता हूं, पूरे डेटा फ्रेम पे वर्क नहीं कर सकता। मुझे अगर पर्टिकुलर फीचर इंडिविजुअल फीचर पे वर्क करना है देन आई कैन डू माय वर्क, अदरवाइज आई वोंट एबल टू डू इट। तो मैप ये है, यानी अगर आपको अप्लाई आता है तो आप सीरीज पे भी वर्क कर सकते हो, डेटा फ्रेम पे भी वर्क कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे डेटा फ्रेम की भी एलिमेंट पे वर्क करना है तो तब जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई मैप। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, डोंट वरी। ठीक है, अभी सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे, वो समझ में आ जाएगा आपको। तो देखते हैं इसे, छोटे छोटे डिफरेंस देखते हैं, फिर उसके बाद इसे देखेंगे आप। तो एक ये आपके पास एक इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई डेटा फ्रेम सीरीज मैप दिस वन, अप्लाई मैप इस डेटा फ्रेम। ठीक है, पूरे डेटा फ्रेम पे, यानी अगर मुझे अप्लाई आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों पे यूज कर सकता हूँ। मैप एक पे यूज, अप्लाई मैप डेटा फ्रेम पे यूज होता है, तो अप्लाई यानी दोनों पे, यानी अप्लाई से मैं ये वर्कर। तो लेट सपोज मेरे पास ये डेटा था, ठीक है, इन दिस डेटा एज एंड मार्क्स, सिंपल मेरे पास डेटा है।
एज और मार्क्स हैं सिंपल मेरे पास डेटे में। देन मैंने कहा कि मैंने एक फंक्शन बनाया कि मैं कोई भी फीचर दूं दैट्स अ एसक्यूआरटी, उसकी क्या करे वो स्क्वायर रूट करके दे दे मुझे सिंपल। तो मैंने कहा कि ये एज है, मार्क्स है, एक डेटा फ्रेम है, दो फीचर है, तो ये क्या करे मुझे एक स्क्वायर रूट एज का भी करके दे दे और मार्क्स का भी करके दे दे। तो यानी इसे समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दैट्स अ एज एंड दैट्स अ मार्क्स, सिंपल 20, 21, 32, 25 एंड 30। ठीक है, अब आप क्या करना चाह रहे हो, ये एक डेटा फ्रेम डीएफ में स्टोर था, यानी अब आप करना चाह रहे हो कि एज का मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाए और मार्क्स का भी स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है, तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया दैट्स अ एसक्यूआरटी, यानी मैं इसमें जो भी वैल्यू डालूं तो क्या करे उसका स्क्वायर रूट कर दे। अब इसमें कोई आइटरेशन तो है नहीं, और हमें पता है जो डिफाइन फंक्शन है वो आइटरेबल नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यानी अब मुझे अगर मैं 20 डालता हूं उसके बाद फिर 21 भी तो डालना है, लेकिन ये तो एक ही बार खत्म हो जाता है। तो ये क्या करेंगे हम डॉट अप्लाई कर देंगे। अप्लाई क्या करेगा, यानी ये फंक्शन का नाम है दैट्स अ एसक्यूआरटी, किससे, डीएफ से। तो डीएफ की एज जो है उसमें पहले 20 जाएगा, किसमें, इसमें 20 जाएगा, देन रिटर्न हो जाएगा 20 का स्क्वायर रूट, फिर 21 जाएगा 21 का स्क्वायर रूट, फिर ये फिर ये फिर ये, फिर उसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। यानी जो हमें प्रॉब्लम थी डिफाइनिंग फंक्शन में आइटरेबल की और आइटरेशन की, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व यानी ये क्या करता है अप्लाई ब्रीजिंग कर देता है। तो देखते हैं क्या इसने कैसे वर्क किया है और किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो आपके पास आपका डेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो दैट्स अ पार्ट, यहाँ पे देख सकते हो एज एंड देयर मार्क्स, आपका डेटा आपके पास इस तरह से आ गया, यानी आपके पास स्क्वायर रूट होके आ गया। तो इस तरह से आप अपना डेटा को क्रिएट कर सकते हो, यानी आपने पूरे डेटा फ्रेम पे स्क्वायर रूट कर लिया, यानी एज का स्क्वायर रूट हर एक इंडेक्सेस वाइज, मार्क्स और मार्क्स का स्क्वायर रूट। गॉट इट, समझ में आया, यस और नो? अप्लाई का पर्पस समझ में आया, लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉजिक समझना वो इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई कैसे वर्क कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एवरीवन एनी डाउट इन दिस पार्ट, किसी को डाउट है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार आपको परेशान करने वाला है, तो इसलिए प्लीज कैजुअली मत लेना। नाउ कम टू द पार्ट कि हमने देखा था डेटा फ्रेम, मेरे पास पूरा डेटा फ्रेम है, उसने स्क्वायर रूट करके दे दिया। अब मैंने कहा कि मैप भी तो हमने पढ़ा है, और लेकिन मैप में हमने क्या पढ़ा, वो एक फीचर पे वर्क करता, पूरे डेटा फ्रेम पे वर्क नहीं करता। एक बार यूज करके देखते हैं डेटा फ्रेम पे डॉट मैप एसक्यूआरटी। तो देखो इसने एरर दे दिया, अब वो एरर देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा फ्रेम हैज नो एट्रीब्यूट मैप। अब ये कह रहा है जो आपने डेटा फ्रेम में मैप यूज करा है वो एट्रीब्यूट नहीं है, यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। क्या मैं अगर ट्रांसफॉर्म से करूं तो ट्रांसफॉर्म से कर सकता हूं? हाँ, मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म से भी कर सकता हूं, यानी मैंने कहा स्क्वायर रूट कर दो, यानी अप्लाई और ट्रांसफॉर्म दोनों एट अ सेम टाइम किसी फंक्शन के लिए वर्क करते हैं डेटा फ्रेम पे, बट मैप सिर्फ सीरीज पे वर्क करता है। अब आपने एक फंक्शन डिफाइन किया था ऊपर, आपने कहा कि मुझे तो लैम्डा भी आता है ना, लैम्डा पे हम वर्क कर चुके हैं, तो क्या मैं सीधे लैम्डा से ऐसे कर सकता हूँ? हाँ, तो आप लैम्डा से भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपली हमने वो किया जो ऊपर आपने लिखा था फंक्शन, उसको लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। क्या आप ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हो? डेफिनेटली, यानी अप्लाई और ट्रांसफॉर्म दोनों डेटा फ्रेम पे वर्क कर सकते हैं एट द सेम टाइम, कोई पर्टिकुलर लॉजिक के लिए, ठीक है। मैप नहीं कर सकता डेटा फ्रेम पे। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस देखे इसके। नाउ तो फिर मैप को देखते हैं कि मैप फिर कैसे वर्क करता है। तो मैंने कहा एक फीचर लिया और उसका स्क्वायर रूट करके दे दिया, तो वो इस तरह से स्क्वायर रूट होके आ गया, ठीक है, सिंपल। आपने कहा क्या, लेट सपोज मुझे यही वर्क करना है, बट इस बार मुझे कैसे करना है, सिर्फ एज का स्क्वायर रूट लेना है, और कैसे स्क्वायर रूट लो कि वो एक नया फीचर उसमें बना दे मेरे एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में। तो उसने एज मार्क्स, एज का स्क्वायर रूट करके एज और स्क्वायर रूट का एक न्यू फीचर आपको बना के दे दिया, ठीक है, इस तरह से। अब आपने कहा लेट सपोज मैं इसमें ये करना चाहती हूँ,
या करना चाहता हूँ। आपने कहा कि मेरे पास ये डेटा फ्रेम है, दिस इज माय डेटा, वेट डेटा फ्रेम को कॉल कर देता हूँ। आपने कहा लेट्स सपोज देयर इज अ x एंड देयर इज अ y, इसे कर लेते हैं एज ऑफ x एंड देयर इज अ मार्क्स ऑफ y व्हिच इज रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपने कहा कि मैं इस तरह से वर्क करना चाहता हूं एंड df डॉट अप्लाई, और अप्लाई मेरे पास क्या है, सिंपल sqrt। ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन था sqrt। एक मिनट में उसे देख लेता हूँ फंक्शन को, यही था ना हमारे पास, या दिस वन sqrt। तो मैंने कहा मेरे पास ये फंक्शन है sqrt, तो इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, ये फंक्शन को लेट्स सी df दिस वन। तो देखा आपने, आपके पास क्या हुआ, जितने आपको फीचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग फीचर्स न्यू क्रिएट करने थे, उसने उसके कॉरस्पॉन्डिंग फीचर क्रिएट करके दे दिया। दैट्स अ ब्यूटी। गॉट इट? समझ में आया एवरीवन? यानी पहले उसने क्या किया था, एग्जिस्टिंग डेटा में ही चेंजेस किए थे। नाउ लेट्स सपोज यू, मे बी इट्स योर ओन कॉल, ये ऐसा नहीं हुआ कि हर बार आपको करना पड़ेगा, ये आपकी अपनी ओन डिमांड पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मुस्कान ने क्वेश्चन पूछा था, तो लेट्स सपोज देयर इट, उनका अपना खुद का अपना ओन एक्सपीरियंस हो सकता है, या मे बी आई डोंट नो, बट द थिंग इज दैट क्या उनका अपना खुद का माइंडसेट है। तो लेट्स सपोज देयर इज अनदर माइंडसेट इज दैट कि इफ यू वांट टू create new columns in the existing data frame which based on your given logic, that's a square root of the existing feature। तो आप या तो ये कर सकते हो, या let's suppose if you want to make change in the existing data frame with the new logic, तो उसमें वो कर सकते हो। ठीक है, ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, ये दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये हमने करा क्या। अगर आपने लास्ट क्लास मिस किया तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी। या मुस्कान? Sir, if we apply a condition कि हमारी एज greater than 20 हो and marks greater than 60 हो, तब भी ऐसा हो तो? डेफिनेटली यू हैव टू डिफाइन योर ओन फंक्शन। अगर आप ये कह रहे हो, आपको अपने फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप कर रहे हो एज, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वहां पे जा रहा है, उसके लिए 20 पे देख रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या किया आपने, वेट, जैसे लेट सपोज मेरे पास ये है एंड मार्क्स ये है। अगर आपने कहा कि ये यहाँ पे जाए, और ये जाने के बाद लेट सपोज हमने एक डिफाइन फंक्शन किया, दैट्स एसक्यूआरटी। ठीक है, एंड मैंने कहा ठीक है, एक आर्गुमेंट मैंने दिया, मैंने कहा इफ एज सिंपली, यानी एज मीन दैट्स एक्स इज लेस देन 20, ठीक है, दैट्स अ कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है, आपने जो कंडीशन दिया है ये उसे लिमिटेड करना पड़ेगा, दिस इज नॉट द यूनिवर्सल कंडीशन। आपने कहा अगर एज लेस देन 20 है एंड दैट्स अ एक्स, क्योंकि एक्स वो एक ही फीचर को ले रहा है, और वो किसको ले रहा है, इसको ले रहा है, तो मीन्स दैट दैट्स अ प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू दिस वन। क्या आपको इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, लूप्स का यूज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू यूज टू फीचर्स एट अ सेम टाइम, अगर आपको दो फीचर्स लेने हैं, देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द फॉर लूप। तो आपको फिर वहां पे फॉर लूप के हेल्प से करना पड़ेगा, यानी फिर आपको उसके बिहाफ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर आई कॉमा जे इन जिप ऑफ df। अब देखो यहाँ पे जिप का यूज आएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको दोनों पे वर्क करना है, df ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब ये है, देन अब आपने चेक किया इफ आई, जो आपका आई है, यानी ये क्या लेगा, इसका फर्स्ट वाला लेगा इंडेक्स, तो वो क्या है, गेट लेस देन 20 है, एंड दैट्स अ जे मे बी इज 50, क्योंकि वो मार्क्स आ गए आपके इस कंडीशन पे है। देन फिर वो क्या करे, एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करे, तो फिर उसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। मे बी अगर आपने कहा कि df ऑफ न्यू फीचर विच इज रिलेटेड टू गिवन, और आपको यहाँ पे एक के भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम के को क्या करेंगे, क्योंकि यही मेरे जीरो इंडेक्स को कॉल करेगा। मैंने कहा df
एंड देन आई कैन से SQRT, ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हो तो देन K, क्योंकि ये 0 को कॉल करेगा, और अगर ऐसा है तो क्या करें, मे बी यू आर जस्ट असाइनिंग द वैल्यू UL, ऐसा है देन एल्स पे जाओ, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे K प्लस इक्वल टू 1 भी, यानी आपको काउंटर भी करना पड़ेगा जब जब ये करेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम कर देगा, और फिर एल्स में भी काउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो वो 0 1 0 1 नहीं ले पाएगा। तो पाइथन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है जितनी भी स्क्रिप्टिंग चीजें हैं, जैसे अप्लाई स्क्रिप्टिंग वन, तो आपने कहा कि अगर मुझे इस तरह वर्क करना है तो मैं कर सकती हूँ क्या, तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। तो स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग सिर्फ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, मे बी 60-70% यू विल टेक द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, बट आपको पाइथन, तो आप पाइथन का अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते, दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि द ब्यूटी ऑफ द पाइथन इज दैट यू कैन डू एनी काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन, तो आप जितना कस्टमाइज करना चाहते हो। अब यहाँ पे लॉजिक कैसे, ये तो सब सोचना पड़ेगा आपको, और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब आपको लग रहा होगा ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या है, तो दैट्स अ प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप ही खुद समझ में आ जाएगा कि ये जिप क्यों किया, क्या पर्पस है, ये K0 का क्या पर्पस है, ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ, मेरे पास ये क्या है, एज, ठीक है, दिस माय एज, वेट, दिस इज माय एज एंड 0, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू एज का, यानी मुझे समझ रहे हो इसमें आइट्रेशन करना है, यानी आइट्रेशन यानी जो मैं नया फीचर बना रहा हूं उसका 0 पे जाके UL हो जाए, फिर देन जाए दोबारा से, फिर K प्लस इक्वल टू 1 यानी K1 हो गया, तो यानी दोबारा से अगर वो इसी में आता है तो फिर दोबारा से उसकी K1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू आ जाए, दैट्स अ पार्ट। बट सर इसमें अप्लाई फंक्शन कहाँ यूज हुआ? हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, अप्लाई नहीं हो पाएगा, दैट्स अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ अप्लाई, क्योंकि आप एट अ सेम टाइम दोनों फीचर पे वर्क कर रहे हो ना, एक फीचर पे वर्क नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब अप्लाई नहीं हो सकता, इसमें हमें अपना ही बनाना पड़ेगा। हाँ ये अपना लूप, तभी तो मैंने अपना लूप क्रिएट किया ना, आई तो थॉट कि इसमें हमें अप्लाई अपने आप का ही ऐड करना पड़ेगा। ना 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 ना, ये आपका अपना ये है, क्योंकि एट द सेम टाइम आप क्या चाह रहे हो कि इन दोनों पे वर्क हो जाए, यानी इसकी ये वैल्यू ले लो और इसकी ये वैल्यू ले लो, एट द सेम टाइम यू आर जस्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, तो यस। है ना। तो अगर आप इस तरह कर रहे हो तो वो वहां पे अगर आप जो डिफाइन फंक्शन कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी आपने कहा, लेट सपोज आपने ये इस तरह से दिया डिफाइन SQRT, लेट सपोज आपने कहा x एंड y, ठीक है, एक डेटा मेरा x से है एंड एक डेटा मेरा y से है। अब जब एक डेटा x से है एंड एक डेटा मेरा y से है तो आप SQRT कर रहे हो, तो लेट सपोज आपने कहा इफ x इज लेस देन 20 एंड y इज ग्रेटर देन 50, देन रिटर्न करो UL, else x is greater than 20 or not, there is no need, ठीक है, मैं उसे छोटा सा एक ML। अब ये पार्ट है, दैट्स अ पार्ट विच इज रिलेटेड टू द एक्स एंड वाई। तो जब यहाँ पे अगर आप ये करना चाहते हो कि एक्स एंड वाई दोनों को मुझे आर्ग्यूमेंट देना है एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे आप df ऑफ, लेट सपोज आपने कहा एज एंड देन देयर इज अ मार्क्स, दिस वन। अब यहाँ पे देखो मैं आपको शो करता हूँ प्रॉब्लम क्या आएगा वो दिखाता हूँ। तो लेट सपोज मैंने एक नया फीचर बनाया कुछ df ऑफ एज 0, ठीक है, और ये किस में बना रहा हूं, मैंने कहा ओके मेरे पास दो फीचर हैं, दैट्स एज एंड देयर इज अनदर फीचर व्हिच इज मार्क्स, ठीक है, इन दोनों की कंडीशन मैंने कहा डॉट क्या करो, अप्लाई करो, ठीक है, एंड देन मैंने कहा ठीक है एक फंक्शन बना लेते हैं, def ऑफ SQRT x y, if x is greater than is less than 25 and y is greater than 50,
क्या करो, रिटर्न करो ml। ठीक है, सिंपल। मैंने कहा ठीक है, एल्स रिटर्न करो यूएल। ठीक है, इस तरह मैंने एक फंक्शन बना लिया एंड देन मैंने कहा ठीक है, ये फंक्शन मैं इसमें से पास कर देता हूँ। दैट्स अ पार्ट कि आपने कहा ये फंक्शन को इस तरह से हमने एक बनाया फंक्शन और ये इस फंक्शन को इस तरह से वर्क करे। मैंने कहा इस फंक्शन को पास कर देता हूँ। ठीक है, ये दैट्स अ पार्ट, यानी ये कह रहा है कि अब मुझे एक y चाहिए, यानी एक y यहाँ पे आपको एक y देना पड़ेगा इस पार्ट पे। यानी ये जो मेरा अब y है, अब ये y को मांग रहा है क्या, यानी ये मैंने कहा यहाँ से एज और मार्क्स को ले लो। ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं x और y को कहाँ से ले लूं। इट्स सिंपल, यानी लेट सपोज, तो मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा करते कि एज तो हमने दे दिया इसे, ठीक है, एज से ही अपने आप मैपिंग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे इसे दे देते हैं df this one and then there is a marks। सिंपल, मैंने कहा ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, x तो एज को ले लेगा वो अपने आप ही, मैंने कहा इसे y मार्क्स को दे देते हैं। वेट, कहाँ मिस्टेक किया, there is a part 1 2 and 1, there is a part, okay this one, sorry। ठीक है, तो मैंने कहा लेट सपोज, मैंने कहा ठीक है, मैंने इसे x यहाँ पे दे दिया और मैंने कहा y मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देन ये क्या करे, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट दैट्स अ y, यानी ये बार बार आपसे यही बोलता रहेगा कि अब मुझे क्या चाहिए, एक पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए जो y उसे चाहिए। तो द थिंग इज दैट कि अब वो y में आइटरेट नहीं कर पा रहा एट द सेम टाइम, यानी वो एक बारी में डेटा फ्रेम पे वर्क तो करता है, लेकिन एक बारी में एक फीचर पे वर्क करेगा, देन सेकंड फीचर पे जाएगा जब फर्स्ट फीचर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको क्या आएगा, इशू, इस तरह का इशू बार बार आता जाएगा, तो आपको ये कहेगा बार बार कि मेरे पास जो y आपने दिया है वो दे दो। मैंने कहा ठीक है, लेट सपोज हम इसे देते ही नहीं है y। ठीक है, मैंने क्या कहा, सिंपल, मैंने कहा इसे नहीं देते हम y, और इसे क्या करते हैं, सिंपली मैंने कहा x दे देते हैं, y देते ही नहीं है हम इसे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि हम यहाँ पे एक अपना इसे क्रिएट करते हैं और इस तरह से एज एंड देन मार्क्स, इस तरह से दे देते हैं हम इसे, सिंपल। नाउ अब आपको क्या करें, दैट्स अ रिक्वायर्ड वन पोजिशनल आर्गुमेंट, वेट सॉरी, नाउ दैट्स अ y इज नॉट डिफाइंड, यानी आप अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे y को पता ही नहीं कर पा रहा है कि मेरा जो फंक्शन y है वो कहाँ गया। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम आपको काफी बार आ सकता है इस तरह का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको अपना खुद का ही क्रिएट करना पड़ेगा, यानी आपको फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर i एंड j करके क्रिएट करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। गॉट इट, समझ में आया? तो दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है, अभी हम ये सारी चीजें भी करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है। वेट, मैं इसे हटा रहा हूँ, इसे भी हटा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपने का एक फीचर मुझे बनाना है, वो फीचर कैसे बनाना है, लैम्डा x ऑफ x माइनस 20। तो आप इस तरह से लैम्डा फीचर भी क्रिएट कर सकते हो, किसका, मार्क्स का, यानी 20 सब्जेक्ट होके आ जाए। आपने कहा कि मैं ट्रांसफॉर्म यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो डेटा फ्रेम पे जब हम वर्क कर रहे थे तो डेटा फ्रेम वर्क कर पा रहा था, है ना, अप्लाई सीरीज पे भी वर्क कर रहा था और डेटा फ्रेम पे भी वर्क कर रहा था। मैप डेटा फ्रेम पे वर्क नहीं कर पा रहा था, ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रेम पे वर्क कर रहा था। मैंने कहा एक सीरीज पे वर्क कर लेते हैं, एज का स्क्वायर रूट एक टी कॉलम क्रिएट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है, दैट्स अ पार्ट, वेट 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 वेट
दिस वन ट्रांसफॉर्म फंक्शन फेल। तो मीन्स इज दैट लेट सपोज ये क्या है, इसका एक प्रॉब्लम है। और वेट, मैं एक बार डेटा फ्रेम दोबारा रीड कर लेता हूँ। दिस वन because transform is can work also series part. Sorry. Apply this one and this one, yeah. So this one is also you can just transform your data also. ये अब वो आगे add on करता जा रहा है क्योंकि वो आगे हो गया काफी। वेट मैं रन कर देता हूँ। That's a part. That's a square root of the lambda आपको करना है, तो then you can do that kind of part transform also. यानी एक छोटा सा डिफरेंस आएगा आगे अभी एक सीरीज और उसके लिए डेटा फ्रेम के लिए, यानी जो वर्क मैं अप्लाई से कर पा रहा हूँ वही वर्क मैं मैप से ट्रांसफॉर्म से भी कर पा रहा हूँ। सेम आपने कहा लैम्डा के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। आपने कहा मैं मैप करना चाहता हूँ तो मैप कर सकते हो, लेकिन मैप के लिए सिर्फ एक सीरीज है, ठीक है। अब आपने कहा कि मैं ट्रांसफॉर्म और कुछ करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, जो वैल्यू दूं उसका 10 से डिविजल हो जाए, ठीक है। आपने इस तरह से ले लिया। नाउ देयर इज अ पार्ट, क्या हमने कहा हम क्या करना चाहते हैं, एज का स्क्वायर रूट करना चाहते हैं और मार्क्स का क्या करना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल करना चाहते हैं। यानी मैंने कहा ये दोनों अलग अलग करे, यानी दोनों के फंक्शन अलग अलग ट्रांसफर हों। तो देयर अ पार्ट, क्या मैंने एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी एज को स्क्वायर रूट से करा एंड मार्क्स को मैंने सिंपली उसके डेटा फ्रेम से किया। तो ये मैं इस तरह से वर्क कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अप्लाई में भी मैंने एक डिक्शनरी बनाया, अप्लाई में वर्क किया इस तरह से। तो अप्लाई और ट्रांसफॉर्म में आप दोनों से इस तरह की डिक्शनरी बना सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस। यानी ट्रांसफॉर्म और अप्लाई अभी तक दोनों सेम है, और मैप एक जगह डिफरेंस करता है, क्या वो डेटा फ्रेम पे वर्क नहीं करता है, सीरीज के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। नाउ कम टू द पार्ट कहाँ पे डिफरेंस आता है। तो देख सकते हो आपके डिफरेंस, ट्रांसफॉर्म वर्क विद फंक्शन, string function, list of function and dictionary, however apply is not allowed with the functions। यानी अभी हम देखेंगे क्या, मैं ट्रांसफॉर्म में सीधे फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं बट अप्लाई में नहीं। ट्रांसफॉर्म कैन नॉट प्रोड्यूस एग्रीगेटेड रिजल्ट्स, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी एग्रीगेटेड रिजल्ट नहीं दे पाता है, अप्लाई दे पाएगा। अप्लाई वर्क विद द मल्टीपल सीरीज एट अ टाइम बट ट्रांसफॉर्म इज अलाउड ओनली अ सिंगल सीरीज एट अ टाइम। यानी अप्लाई में मैं मल्टीपल सीरीज यानी मल्टीपल फीचर्स पे वर्क कर सकता हूं, लेकिन ट्रांसफॉर्म पे वर्क नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा ट्रांसफॉर्म करो क्या, स्क्वायर रूट, सिंपल, इसने स्क्वायर रूट किया, ठीक है। उसका मैंने सिंपली इसे क्या दिया, एंड डेटा फ्रेम को हमने वहां पे बनाया था। मैं एक बार डीएफ दोबारा कॉल कर लेता हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे। दिस इज माय डेटा फ्रेम, सिंपल, and then and this I come this part, ठीक है। स्क्वायर रूट था मेरा एक, मैंने कहा ट्रांसफॉर्म कर दो उसे, ठीक है। तो इसने ट्रांसफॉर्म किया मेरे उन वैल्यूज को स्क्वायर रूट को। मैंने कहा ये क्या करो, अब तुम जो एनपी स्क्वायर रूट करो और एनपी ऑफ एक्सपोनेंशियल को ट्रांसफॉर्म करो डेटा को, सिंपल। तो इसने क्या किया, दैट्स अ एज, सिंपल, यानी एज का स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल मार्क्स का स्क्वायर रूट एंड एक्सपोनेंशियल, सिंपल। यानी इस तरह से मैंने क्या किया, सीरीज ऑफ फंक्शंस का वर्क किया, यानी ट्रांसफॉर्म विद अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस। लेकिन आप ये वर्क अप्लाई में करोगे देन यू वोंट एबल टू डू इट। यानी इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म में थोड़ा चेंज ये होता है कि आप सीरीज ऑफ फंक्शन एक साथ यूज कर सकते हो, लेकिन अप्लाई में सीरीज ऑफ फंक्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये तो देखा ही था, सिंपल डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ट्रांसफॉर्म और अप्लाई में बस डिफरेंस अभी क्या है, एक डिफरेंस है कि आप सीरीज ऑफ फंक्शन यूज नहीं कर सकते अप्लाई में। वहां पे आप सीरीज यानी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप 2 मैनिपुलेशन या 3 मैनिपुलेशन, जो भी 3 फंक्शंस दोगे प्री डिफाइंड फंक्शन, वो वर्क कर पाओगे, अप्लाई में वर्क नहीं कर पाओगे। नाउ देयर इज अनदर डिफरेंस कि एग्रीगेटेड रिजल्ट, ट्रांसफॉर्म कैन नॉट प्रोड्यूस एग्रीगेटेड रिजल्ट्स बट अप्लाई टू प्रोड्यूस एग्रीगेटेड रिजल्ट। अब ये एग्रीगेटेड रिजल्ट का मतलब क्या है, लेट सपोज मेरे पास एज है, मार्क्स है
एंड हाइट है। मैंने कहा कि क्या करे, एज के हर एक रो पे जाए और उस रो का पूरा सम करके मुझे एग्रीगेटेड वैल्यू दे दे, यानी एक्स डॉट सम। जब आप एक्स डॉट सम करते हो ना, तो मींस वो पूरा उसका एग्रीगेटेड रिजल्ट दे देता है। आप ये अप्लाई से कर सकते हो, हाँ अप्लाई से कर सकते हो, लेकिन टर्म फॉर्म एग्रीगेटेड रिजल्ट नहीं देता आपको। तो मैंने कहा ठीक है अप्लाई करो दिस वन, तो उसमें एग्रीगेटेड आपने कहा लेट सपोज दैट्स अ पार्ट, आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो, यानी एग्रीगेटेड एक बारी में कर सकते हो। आपने कहा मैं ट्रांसफॉर्म से करना चाहता हूं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ये डिफरेंस है जो ट्रांसफॉर्म डिड नॉट परफॉर्म, ठीक है। अदरवाइज आप सीरीज पे वर्क कर सकते हो, डेटा फ्रेम पे वर्क कर सकते हो, एग्रीगेटेड रिजल्ट बस फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। और अप्लाई एक वर्क नहीं कर सकते कि लिस्ट ऑफ फंक्शंस, स्क्रिप्टिंग या प्री डिफाइंड फंक्शंस को लिस्ट बना के यूज नहीं कर सकते आप एक सीरीज पे, क्योंकि वो सीरीज वाइज वर्क कर रहा होता है। नाउ देयर इज अनदर कि अप्लाई वर्क विद मल्टीपल सीरीज एट अ टाइम, बट ट्रांसफॉर्म इज ओनली अलाउड टू वर्क विद अ सिंगल सीरीज एट अ टाइम। तो आपने कहा कि लेट सपोज मुझे क्या चाहिए, डीएफ ऑफ अप्लाई, यानी आपको आंसर चाहिए क्या, एज का माइनस मार्क्स का मल्टीप्लाई, सॉरी सबसेक्शन, यानी वो एज पे जाए एंड देन वो मार्क्स पे जाए और फिर उसका सबसेक्शन मुझे होके मिल जाए, दैट्स अप्लाई। यू कैन वर्क इन दिस वे ऑल्सो, यानी आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप वर्क भी कर सकते हो। आपने कहा ये कैसे वर्क करे, एक्सिस इक्वल्स टू 1 पे वर्क करे, तो आप इस तरह से सिंपली इसे वर्क कर सकते हो। तो उसने आपको दोनों यानी एज और मार्क्स का सबसेक्शन करके आपको उसका आंसर दे दिया। बट लेट्स सपोज इफ यू वांट टू डू द सेम टास्क बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म, देन यू वोंट एबल टू डू इट। तो डिफरेंस यही है ट्रांसफॉर्म में और अप्लाई में। तो ट्रांसफॉर्म का जो है वो एग्रीगेशन नहीं हो सकता, अप्लाई का एग्रीगेशन अप्लाई से एग्रीगेशन कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म में नहीं। ट्रांसफॉर्म में आप लिस्ट ऑफ फंक्शंस यूज कर सकते हो, अप्लाई में नहीं कर सकते। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि मेरे पास दो फीचर हैं, अगर इस फीचर और फीचर का मुझे कुछ डायरेक्टली मैनिपुलेशन करना है, देन आई कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, बट मैं ट्रांसफॉर्म में नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्म में मैं सिर्फ एक ही फीचर को एक बारी में ले पाता हूँ, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपके पास वो लॉजिक कैसा है। अगर वो लॉजिक ऐसा है कि वो आप सिंपली उसे कॉल कर सकते हो, तो देन यू कैन यूज इट। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो लॉजिक है वो एक फीचर टू फीचर में सिंपली मुझे सबसेक्शन करना है, ठीक है। तो दैट्स अ पार्ट। तो ये क्या कह रहा है आपको कि एरर एज, क्योंकि कैसे, क्योंकि हमने देखा था अप्लाई जो था वो कैसे वर्क कर रहा था पहले, इस तरह है ना, इसका ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे वर्क कर रहा था। मैंने कहा कि अब कैसे वर्क करना है, ऐसे और ऐसे का माइनस करना है, ठीक है। यानी इस फीचर और फीचर का माइनस करना है, तो आई हैव टू गिव दैट आर्गुमेंट विच इज रिलेटेड टू द एक्सिस, अदरवाइज वो आपको एरर क्रिएट करता रहेगा। तो आप इस तरह से उसे यूज कर सकते हो, देन यू विल गेट योर आंसर इन दिस वे। तो सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म और इसका अप्लाई का वर्क कर सकते हो डिफरेंट, ठीक है, सिंपल। नाउ कुछ और थोड़े से डेटा फ्रेम है, जैसे मैंने कहा एक डेटा फ्रेम बनाया, देन डेटा सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट। मैंने कहा क्या क्या करो, मुझे डिफरेंस चाहिए, किसका डिफरेंस चाहिए, डेटा के सेल्स में माइनस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की वैल्यू चाहिए, रेवेन्यू की चाहिए एंड प्रॉफिट की चाहिए। अब ये एग्रीगेशन है पूरा, यानी एक सेल्स में जाएगा, उसकी पूरी रो में देखेगा मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसका डिफरेंस करके आपको दे देगा, ठीक है। फिर रेवेन्यू में जाएगा, उसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो देन दैट्स अ एग्रीगेशन, यू कैन डू दैट काइंड ऑफ एग्रीगेशन। बट आपने कहा कि ये मैं उससे करना चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म से, देन डिड नॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये एग्रीगेशन का पार्ट है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सीरीज, ठीक है। तो इस दैट्स अ डिफरेंस, यानी तीन डिफरेंस जो हमने देखे थे जो ऊपर दिए हुए वो आपको इस तरह से आपके डिफरेंस में दिए हुए हैं। नाउ अब जो अप्लाई और अप्लाई मैप में अब डिफरेंस आता है, मैंने कहा कि अप्लाई में डेटा से कहा
अप्लाई करो, क्या करो, जो भी मैं इसे वैल्यू दूं वो क्या करे, ये उस वैल्यू को 0.2 में चेंज कर दे, यानी 1.06 और 1.07, देन 0.7, देन 1.8, यानी उसकी हर एक एलिमेंट पे जाके उस एलिमेंट पे मैनिपुलेशन करना है मुझे, और वो भी कैसे करना है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो मैं अगर अप्लाई से करता हूं, आई वोंट एबल टू डू इट, ठीक है। मैंने कहा लैम्डा दैट्स अ रिटर्न, दिस इज रिटर्न करना, दिस इज द प्लेस होल्डर, आपको याद होगा दिस प्लेस होल्डर, और ये 0.2 f मींस फ्लोट, 0.2 यानी डेसिमल की 2 वैल्यूज। नाउ यहाँ पे बस चेंज आता है, दैट्स अप्लाई मैप। ओके, सो वी कैन यूज अप्लाई मैप हेयर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, अप्लाई, ठीक है। आपके पास आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है अप्लाई मैप, ट्रांसफॉर्म एंड अप्लाई मैप। तो जितने इलस्ट्रेशन हो सकते थे, डिफरेंस हो सकते थे, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। क्या मैप कहाँ पे यूज होता है, अप्लाई कहाँ पे यूज होता है, ट्रांसफॉर्म कहाँ यूज होता है, एंड अप्लाई मैप कहाँ पे यूज होता है। तो अप्लाई मैप का सिर्फ एक ये ही एडवांटेज है कि मुझे एलिमेंट पे जाके उस एलिमेंट पे भी अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं सिर्फ किससे कर पाऊंगा, इससे कर पाऊंगा। लेट्स सी, आपने कहा ठीक है ये तो सही है, आई वांट टू डू द सेम टास्क बाय द हेल्प ऑफ मैप, डेटा फ्रेम नॉट। तो मैंने कहा ठीक है मुझे, लेकिन सीरीज तो आती है ना, तो मैं सीरीज वाइज इसे ऐसे करके कॉल कर लेता हूं, देन यू कैन डू इट, क्योंकि दैट्स वाई वो किसका कॉम्बिनेशन है, अप्लाई प्लस मैप का, तो इसीलिए उसे अप्लाई मैप कहा गया है, ठीक है। तो अगर मैं डेटा फ्रेम पे, देन अप्लाई मैप, क्योंकि मैं ये मैप में कर सकता हूँ, अप्लाई में नहीं, लेकिन मुझे पूरे डेटा फ्रेम पे करना है, तो एट द सेम टाइम आई कैन डू इन दिस वे। या एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार, any issue, any doubt? The good part is that whatever जो भी आपको अगर यूज करने हैं, ठीक है, which is related to whatever manipulation जो आपके दिमाग में आ रहा है उसे करके देखना। अगर नहीं आता है देन इन द नेक्स्ट क्लास यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन कि अब मुझे ये सर मैनिपुलेशन करना है बट मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, तो हाउ मे आई डू इट, इज इट रियली एसेंशियल टू डू दिस काइंड ऑफ टास्क मैरिली विद द अप्लाई। अगर अप्लाई से भी नहीं होते हैं, सॉरी अप्लाई से करके देखो, अगर नहीं होते हैं देन यू कैन यूज कोर पाइथन ऑल्सो। तो आई जनरली, मैं बताऊं, मैं अपना मैं तो जनरली कोर पाइथन यूज करता हूं। रीजन इज बिहाइंड दैट, मुझे ये याद नहीं रहती स्क्रिप्टिंग फंक्शंस, तो मैं यूज टू भी नहीं हूँ और इनको यूज भी नहीं करता, एक्सेप्ट अप्लाई को, जैसे छोटी छोटी मैनिपुलेशंस हैं तो मैंने कहा ठीक है अप्लाई से कर लेते हैं। बट द बिग मैनिपुलेशन तो जनरली 90% मैं कोर पाइथन का यूज करता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास यूज टू में रहता है, मुझे वो स्क्रिप्टिंग फंक्शंस याद भी नहीं रहते और मैं याद करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो याद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है याद करते हैं तो वो रेस्ट्रिक्ट, यू जस्ट स्ट्राइव टू डिपेंड, मतलब मींस यू आर जस्ट क्रिएटिंग योर डिपेंडेंसी ऑन दी अदर फीचर्स। वैसे इतना सारा पाइथन में वर्क करना होता है। नाउ द टाइम इज दैट कि आप कोर पाइथन पे फोकस करो, देन यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि हम इस डेटा में ये मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कैन आई डू दैट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, और व्हाट एल्स आई कैन डू, जस्ट स्टाइव टू डू इट। इसका प्रैक्टिस जो मैंने दिखाया है सिर्फ वहां तक लिमिटेड मत कर देना अपने आप को। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डेटा साइंस इज दैट कि जब आपको डेटा मिलता है, रियल टाइम डेटा, यू नो वर्किंग इन रियल टाइम इंडस्ट्री, इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ डेटा में इन्फो, यूनिक वैल्यू काउंट्स और ये सब करना होता है। बहुत कुछ काम करना होता है। वो तभी हो पाएगा जब आपका थोड़ा बहुत कमांड अप्लाई पे, पहले मैं ये नहीं कह रहा अप्लाई को छोड़ देना, ठीक है, अप्लाई को करना, क्योंकि रीजन इज, आई विल टेल यू वन रीजन। अप्लाई कहाँ पे आपका यूजफुल होगा, जब आपकी आइट्रेशन में भी 1 CR से ऊपर निकल जाएंगी। अगर आपका लूप फॉर लूप में, यानी नेस्टेड फॉर लूप में वर्क कर रहा है, यानी आप चाहते हो कि एक ये फीचर है, फिर वो उसका अनदर फीचर, फिर उस पर जाके वो सटल वे में 2-2 बार वर्क करे, है ना, तो वहां पे क्या होता है, आपका प्रोसेसिंग बहुत लंबा हो जाता है, विच इज टाइम कंज्यूमिंग। और हो सकता है कि आप वहां पे अप्लाई से बिल्कुल सिंपली यूज कर सकते हो। तो दैट्स अ पार्ट, क्या वहां पे कोशिश करना कि अप्लाई को अवॉइड मत करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लॉजिक कि मैं अप्लाई भी यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ,
तो इस तरह कर सकते हो क्योंकि बहुत फास्ट होता है. अप्लाई इज वेरी वेरी फास्ट एज कंपैरेटिवली टू दी नेस्टेड आइटरेटेड लूप वेयर आइटरेशन विल बी गोइंग बियॉन्ड दी 1 CR आइटरेशन. 1 CR मतलब 1 करोड़ आइटरेशन से भी ऊपर जा रहा है. तो वो आपके जीपीयूज पे भी वर्क करता है कि आपका सीपीयू और जीपीयू कैसा है. अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम कंज्यूमिंग भी होगा. तो ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है इसका रिलीजियसली, प्लीज प्रैक्टिस करना, अदरवाइज फिर आगे प्रॉब्लम आएगा. दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, रोज में से एक फीचर में से कैसे फीचर क्रिएट करना है. और जैसे हमने स्पेशल पंडास में भी किया था ना कि लेट सपोज str.contain, मेरे पास कोई टेक्स्ट डेटा है तो मैं उस टेक्स्ट डेटा को उठा सकता हूँ. दैट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द, मैंने कहा पीआई से मुझे स्टार्टेड करना है. ठीक है, बाकी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन आपको एक्सक्लूसिवली करवाऊंगा. दैट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है स्पेशली एनएलपी के लिए. तो कोशिश करेंगे उसमें भी हम सारे फंक्शंस को कवर करें, सब नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैं उसमें बताऊंगा आपको कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर एक्सप्रेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके वर्क को बहुत एफिशिएंट बना देता है व्हेन यू आर डीलिंग टेक्स्ट डेटा. अदरवाइज पाइथन से भी वो वर्क कर सकते हो. जैसे लेट सपोज मैंने कहा देयर इज अ टेक्स्ट, हेलो 9123128885 देन 6, इस तरह से कोई डेटा है. ठीक है, और मुझे ये कॉन्टेक्ट नंबर फेच करना है. देयर इज अनदर डेटा ए, बट ये किस तरह है, इस तरह से 258, अब इस तरह से डेटा है. एंड देयर इज अ थर्ड डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये डेटा है ना, तो इसमें ऐसा नहीं आप पाइथन से इसकी कांटेक्ट नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट थ्रू मतलब आई कैन से बाय द हेल्प ऑफ, और थ्रू आई कैन से रेगुलर एक्सप्रेशन आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा में से इंटीजर वैल्यूज को फाइंड आउट करना बहुत आसान है. और कोई और मुझे बता सकते हैं ये पाइथन से कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज अगर इफ आई वांट टू डू द सेम टास्क टू फेच that contact number from this string, from this string, from this string, how may I do it? Anyone? कोई बता सकते हैं कैसे होगा? Did you get my question everyone? Yes or no? पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना बोलो. Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. क्वेश्चन समझ में आया सबको? स्वाधीन, अक्षिता, अमित, मुस्कान, पूजिता. ठीक है सूरज, अभी आपको नहीं आएगा. ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो गुड, नहीं समझ पा रहे डोंट वरी. ठीक है, तो फर्स्टली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आल्सो. या अक्षिता क्वेश्चन समझ में आया? अमित आपने बहुत सारा क्लास मिस कर दिया है ना? Yes, sir. Actually, I was COVID positive, so अभी थोड़ा बेटर है. तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, मेरा एक इवनिंग में बैच होता है 8:30 टू 8 से शुरू हो जाता है, वो 8 to 9 वेरी करता है बेसिस ऑन माय ओन अवेलेबिलिटी आल्सो. तो वो चलता है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. ठीक है, तो आप वो अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें पाइथन स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप चाहो तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. सर कब होता है एक बार तब? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 3 दिन होता है वो बैच. ठीक है, और उसका टाइमिंग रहता है 8 to 8:30 स्टार्टिंग टाइम बता रहा हूँ मैं. और वो 9:30 to 10 चलता है. 1 to 1.5 आवर्स का वो बैच चलता है. एक्चुअली सर मैं ट्राई कर सकता हूँ बिकॉज क्या वीकडेज में मेरा ऑफिस टाइमिंग 8:39 तक कॉल चलती है, मेरी कॉल्स होती है. लास्ट कब फ्री होते हो आप? मैं 9:30 के बाद ही फ्री होता हूँ ऑफिस से. नहीं, फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पूरा रात जगना पड़ता है. मुझे प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट को, है ना, क्योंकि वो फिर कहेंगे कि सर आपने लेट कर दिया. तो क्योंकि आपका बहुत सारा पार्ट मिस कर दिया आपने, मुझे लगता है ना. पाइथन पढ़ा है पूरा आपने? यस सर, पाइथन. हाँ जी सर, पाइथन पढ़ा है. और एंड अभी मैं स्टैट भी पढ़ रहा हूँ. अब आपकी रिकॉर्डिंग से सर मैं पढ़ रहा हूँ. तो ओके ओके ओके, चलो ठीक है.
क्योंकि पाइथन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इसका कोई मुझे आंसर बताओ कैसे होगा ये, अगर मुझे पाइथन से करना है तो। मेरे पास ये स्ट्रिंग है hello 9128755-1, there is another string ab bracket parenthesis 91 dash parenthesis 2258 dash parenthesis 91। कोई पाइथन से बताएगा ये कैसे होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, वो तो वो देखेंगे हम। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बस एक छोटा सा सिंटेक्स होता है, दैट्स अ सिंटेक्स व्हिच इज रिलेटेड टू दिस वन। ठीक है, तो ये सिंटेक्स मैं जैसे ही दूंगा वो तुरंत हो जाएगा। पाइथन में कैसे होगा? एनीवन? या मुस्कान, पूजिता, अक्षिता? Sir, we have to concatenate it. No need to concatenate. You have 3 strings. Let's suppose ये आपके पास एक A B C 3 strings हैं अलग अलग, ठीक है, and the problem is that कि ये strings में text भी merge है, then the problem in this particular part you have to fetch contact number from this particular string। यानी आपको सिर्फ क्या करना है, 912 जो digits हैं उनको fetch करना है यहाँ से। Sir, we can use the loop and is number function. Which one? Is number. Great, good. Is digit, that's a function. Is digit. हाँ, sorry. Great, good. So definitely for I, let's suppose मेरे पास में इसमें गया for I is this one, then you can check if this one I dot is digit है, then print कर दे I, है ना। और ये तो मैं आपको print I बता रहा हूँ, आप append कर सकते हो, store कर सकते हो, whatever you want, ये तो हम already, but that's a logic definitely dot is digit, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप पाइथन से कुछ कर ही नहीं सकते, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ पाइथन। तो कोई आपसे कहता है कि अगर ये वाला टास्क से आप पाइथन से करके दिखाओ, मींस या तो उसने पाइथन पढ़ा नहीं है, अगर आपने मेरे से कुछ पूछा और मैं नहीं कर पा रहा हूँ पाइथन से, हाँ ये हो सकता है कि उस टाइम पे नहीं कर पाऊँ क्योंकि लॉजिक कभी कभी आपको स्ट्राइक नहीं करता। जैसे एक बार हम लोग वर्क कर रहे थे तो पूरी रात भर जगे रहे, सुबह 7 बज गए, नहीं वो लॉजिक काम कर रहा, फिर सोए और मतलब 7 बजे सोए, 11:30 बजे सुबह उठे, किया, और उठते ही आधे घंटे के अंदर वो कोड क्रिएट हो गया। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाइथन से आप कर ही नहीं पाओ, ये मैं नहीं मान सकता। क्या हो सकता है हमारा स्किल इतना अच्छा ना हो तो हम कर नहीं पाए, या फिर कोडिंग का इतना वो वे ऑफ हॉराइजन इतना अच्छा ना हो तो ना कर पाए, लेकिन ये अच्छा आपने इस डिजिट कैसे सोचा मुस्कान? एक मिनट वेट, बाकी सबने सोचा था इस डिजिट, पूजिता एंड अक्षिता, स्वाधीन, आप लोगों ने सोच पाए थे ये वाला पार्ट? सर मैंने अपेंड के बारे में सोच रहा था, जैसे कि कॉन्कैटिनेट। अपेंड तो इसमें कर ही नहीं सकते, पहले तो वो डिजिट फाइंड आउट करना। और अक्षिता आपने क्या लॉजिक सोचा था, क्या सोच रहे थे? यस अक्षिता, पूजिता, व्हाट्स यू कॉल? मुस्कान आपने इस डिजिट कैसे सोचा? सर ये वाला मैंने पहले लाइक क्वेश्चन देखा है, मतलब मैंने करा हुआ है शायद। ओके ओके ओके, तो एंड पाइथन फंक्शंस भी आते हैं। ओके ओके, ठीक है। सो मींस इज दैट क्या प्रैक्टिस? अच्छा इस डिजिट मैंने पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया? यस सर, पढ़ाया हमने। तो यानी प्रैक्टिस, मैंने पहले भी बोला हुआ कि जितना ज्यादा, और शायद मैंने ये क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है असाइनमेंट में, शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने दिया हुआ है कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां पे वो उसका टेक्स्ट फाइंड करने के लिए। तो द थिंग इज दैट कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो वही है, मैं यही सजेस्ट करूंगा, हाँ असाइनमेंट में है शायद ये, है ना, तो यही सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस करो प्लीज। पाइथन को मत छोड़ो, पाइथन को अगर आपको लगता है कि पाइथन वीक है या आपको लगता है कुछ डाउट्स रह गए हैं, देन आप मेरे वो बैच में आ सकते हो, ठीक है। मैं बस ये लिबर्टी दे सकता हूँ, देन यू कैन जस्ट कम इनटू द बैच, जो मेरा भी फ्रेश बैच चल रहा है उसमें आप कर सकते हो, दोबारा से पाइथन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पाइथन हमारा कुछ पार्ट रह गया, मिसिंग है, कुछ ऐसा है, देन इट्स मोस्ट वेलकम। लेकिन उसे कैजुअली मत छोड़ना, ऐसा डेटा साइंटिस्ट सब कुछ आप सीख सकते हो, मशीन लर्निंग भी सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ आसान है। लेकिन जहां डेटा साइंटिस्ट को प्रॉब्लम आता है, दैट्स अ पार्ट डेटा क्लेंजिंग। डेटा क्लेंजिंग मीन्स दैट बहुत गंदा डेटा मिलेगा और बिना पाइथन के वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब नाउ कम टू द पार्ट, मैंने कुछ एक और आपको टास्क दिया था कि टाइटेनिक डेटा पे आपको रिपोर्ट बनाना है। मुझे अक्षिता ने कर दिया है मेल, बाकी सबका क्या है कॉल?
सिर्फ अक्षिता ने क्यों किया? सर ये कौन सा टास्क था? आई डोंट थिंक मैं उसमें थी। क्या था सर? आई डोंट थिंक सो। मैंने नहीं, अच्छा एक मिनट वेट, किस किस को पता है कि ये वाला टास्क मैंने दिया था कि यू हैव टू जस्ट राइट अ रिपोर्ट? नहीं दिया था क्या मैंने? लास्ट क्लास में दिया था ना ये वाला, कि आपको एक रिपोर्ट लिखना है बेसिस ऑन द डेटा, कि आपको उसमें DMAIC मैथडोलॉजी यूज करनी है, डी के अंदर डिफाइन करना है कि व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्ट राइटिंग दिस रिपोर्ट, देन इन द ए पार्ट यू जस्ट राइट डाउन ऑल द एनालिसिस, एंड इन द एम पार्ट यू हैव टू मेजर ऑल द थिंग्स। नो, बोला था ये नहीं? तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था वही है क्या, जो हमने पूरे टाइटैनिक वाले रिपोर्ट पे जो हमने मतलब आपने जो करवाया था हमें वही दोबारा से करना था? रिपोर्ट बनाना है, मीन्स दैट यू हैव टू राइट रिपोर्ट आल्सो एट द सेम टाइम। तो आपको वी हैव टू राइट रिपोर्ट, द कंक्लूजन आउट ऑफ दैट। not the conclusion, the first thing is that आपके पास कोई भी data है तो means let's suppose this is the Titanic data, so objective is that let's suppose if any company wants to make their new ship just like the Titanic one, but they had some experience pertaining to the Titanic, so they want to include all the experience in their own product। तो वहां पे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या KPIs हो सकते हैं, तो ये दिस इज द डेटा, एंड आपने उसके ऊपर एनालिसिस किया, देन इन द एनालिसिस यू विल फाइंड आउट ओके लेट्स सपोज इफ द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन दैट केबिन, or maybe there's a ratio between the male and the female, how many females were survived, how many males are survived, so that's kind of thing you can just do that kind of analysis। And let's suppose if the passengers traveling especially in the P class, the first one, the second one, what are the chances of survive? So these things you have to segregate basis on the age of age, let's suppose basis on the age you can just classify it, if the age group or the passenger is belonging from the age group to 20 to 25, what are the chances of survived? So these kind of analysis you can do। ये इसीलिए important है कि at the same time you have to write down your own analysis into the report। हो सकता है आपका कंपनी शायद आप जहां जाओ वहां जरूरत ना पड़े, but maybe if you are just issuing your startup also, then you have to give that report to your client। और ये that's a part under the project management। if you are dealing under the project management, then you can understand you have to write up also। तो आप खुद देखोगे कि आज जब आप कुछ चीजें लिखते हो ना, देन आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, यू फील मोर कनेक्टेड विद द डेटा। अक्षय, आपने जब किया ये रिपोर्ट लिखा तब देन आपको ज्यादा कनेक्शन फील हुआ या नहीं हुआ? मतलब मीन्स पहले ज्यादा डेटा समझ में आ रहा था या रिपोर्ट लिखने के बाद आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा था? व्हाट्स योर कॉल अक्षिता? तो ये सबको करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट कर रहे बाकी सब नहीं कर रहे। तो लेट्स सी थोड़ा बहुत हम इसमें करके देखते हैं, अप्लाई वगैरह जो हमने अभी देखा वो यूज करते हैं डेटा में। तो दैट्स अ हेड, मैंने देखा ओके देयर आर सम फीचर्स, सर्वाइव, पैसेंजर नेम, एंड देयर इज अ केबिन, सो C85 दैट्स अ केबिन। नाउ आई वांट टू जस्ट फेच दी, पता नहीं मुझे, मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा टाइटैनिक ट्रेन केबिन अप्लाई, क्या करना चाहता हूँ ये? कोई बताओ मुझे क्या करना चाहता हूँ? व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड? ओके ग्रेट, गुड वन। मैं भी उसे एक बार पढ़ लूंगा, ठीक है, व्हेन आई गेट गुड टाइम देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट टू रीड इट योर रिपोर्ट, देन आई विल डेफिनेटली गिव सम फीडबैक, ठीक है। ट्यूसडे के बाद ही पढ़ पाऊंगा, अभी मेरा ट्यूसडे तक थोड़ा बिजी है शेड्यूल, उसके बाद पढ़ के मैं आपको फीडबैक देता हूँ। या चलो कम टू द टॉपिक, बाकी सब भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और आज जितना ट्राई करोगे उतना ही अच्छा है। इस कोड का मतलब बताओ क्या करना चाह रहा हूं मैं? व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड? हाँ हाँ, सोचो उसे क्या करना चाह रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल, मैं सिंपली क्या करना चाह रहा हूँ मैं बता दूंगा तो फिर पता ही चल जाएगा। कोई बताओ मुझे, बहुत सिंपल है। चलो हिंट दे देता हूँ, आई होप सो तब समझ में तो आ ही जाएगा, फिर क्या है। कोई बताएगा मुझे या हिंट दूं? जल्दी बोलो, हाँ ना बोल दिया करो। हिंट दूं या बताओगे?
सर सबकी वैल्यू नल करनी है कैबिन वाले कॉलम की? नहीं 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 नहीं, यानी अच्छा ये तो समझ में आ रही है, केबिन फीचर पे मैं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं केबिन फीचर को एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये केबिन फीचर कुछ इस तरह है, C85, C123, E46, C103। सो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितने मेरे पास केबिन्स हैं इस शिप के अंदर। क्योंकि अभी क्या है, जैसे मैंने केबिन की ना, लेट्स सपोज मैंने कहा यूनिक, तो मैंने यूनिक किया तो ये सी में कुछ उनको डिजिट के संग यूनिक दे रहा है। बट लेट्स सपोज आई वांट टू कैटेगराइज दैट यूनिक वैल्यूज इनटू द लेटर्स। समझ में है क्या पर्पस है? यस और नो? यानी C85 है तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने पैसेंजर्स ऐसे थे जो सी में ट्रेवल कर रहे थे, सी केबिन में थे, कितने पैसेंजर्स ऐसे हैं जो ई में थे, जी में थे, एंड बेसिस ऑन द केबिन आई जस्ट डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस कि कौन से केबिन की पैसेंजर ज्यादा सर्वाइव्ड हुए या कौन से पैसेंजर्स के सॉरी कौन से केबिन के पैसेंजर डाइड हुए। ये बहुत इनिशियल है, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। आगे जाके डेटा बड़ा हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ये बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे एक आपको ओवरव्यू करना है, कैसे आपको एक काइंड ऑफ रोड मैपिंग करनी है। दैट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द डेटा एंड हाउ टू जस्ट फैच द इंफॉर्मेशन। जरूरी नहीं होता, दिस इज नॉट द डेटा साइंस कि हम इन्फो कर दें, कॉलम्स कर दें एंड देन हमने डेटा में मिसिंग वैल्यू फिल कर दी और फिर उसके बाद हमने फीचर इंजीनियरिंग कर दी, फीचर सिलेक्शन कर दिया, फ्रॉम एस्केलन डॉट लीनियर मॉडल कर दिया, फ्रॉम एस्केलन डॉट ट्री कर दिया, डिसीजन ट्री क्लासीफाई कर दिया, एक्यूरेसी आ गया, दिस इज डेटा साइंस। नो, वो डेटा साइंस नहीं होता है, वो डेटा साइंस नहीं है, विच इज जस्ट काइंड ऑफ maybe I am just giving a toy in your hand and you are playing with the toy. It is just kind of thing. जो डेटा है ना उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द डेटा साइंस। वो इंपॉर्टेंट होता है ना रियल टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास कोई फीचर है, उसमें इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी हुई है, नाउ आई हैव टू फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन फीचर, उसमें से इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है। नाउ अब समझ में आ रहा है मेरा क्या करना चाह रहा हूँ इस कोड में? अब तो बताओ। Yes sir, now we are getting it. अब तो क्या है, क्या आएगा अगर इस कोड को मैं करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास फिर? Sir, we will get the list of all the letters ये लिस्ट of the वेट, ये हमें लिस्ट देगा क्या ये कोड? नहीं सर, वो उस केबिन वाले कॉलम में सिर्फ वो वाले लेटर्स डाल देगा आई गेस। वेट, सो मींस इज दैट लेट्स सपोज मैंने कहा दिस वन, देन मुझे इसका फर्स्ट चाहिए। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या कर रहा था मैं वहां पे? यही कर रहा हूँ क्योंकि केबिन के वो फर्स्ट आइटेशन पे गया और फर्स्ट आइटेशन की जो फर्स्ट वैल्यू वो मुझे दे दे, तो ये एक फीचर मेरा केबिन, उसी केबिन फीचर में ABC करके मुझे दे देगा। बट मैंने इसे जब रन किया तो इसने मुझे एरर दिया। लेट्स सी एरर को देखते हैं क्या एरर क्या है। ये कह रहा है फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब क्या होता है इस एरर का? मुझे तो मतलब नहीं पता, कोई बताओ मुझे ये एरर का मतलब क्या है। ये एरर पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा है। फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, क्या है इसका मतलब? मैंने तो कोड बिल्कुल सही लिखा है, इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये कह रहे हैं That we cannot break that NaN object because its data type is float and float data cannot be broken into कैसे पता different। चला आपको? सर क्योंकि float है। Sir, NaN is the float. Data type is float only. अच्छा, वो थिंकिंग प्रोसेस क्या था इसके पीछे? कैसे पता चला कि इसमें NaN है तो इसीलिए ये फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल? कैसे सर सोच पाए आप? जैसे कि सर फ्लोट को हम एडिट नहीं कर सकते, बट लिस्ट में जो रहेगा उसको एडिट कर सकते हैं। एंड सर आपका लास्ट क्लास और 2-3 क्लास से पहले बताए थे, ऑलवेज याद रखना NaN इज द फ्लोट ओनली, डाटा टाइप उसका फ्लोट रहेगा। अच्छा, तो ये इसका मतलब क्या है? फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, इसका मतलब क्या है ये बताओ? एग्जैक्ट मतलब क्या है इस एरर का?
या मुस्कान? सर इट मींस जैसे हम स्ट्रिंग को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, ओके, वैसे वी कैन नॉट ब्रेक फ्लोट डेटा टाइप इन डेटा टाइप, सो दैट इज व्हाई फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। जैसे हम स्ट्रिंग्स को ब्रेक कर सकते हैं ऐसे हम फ्लोट को नहीं ब्रेक कर सकते, आपका कहना ये है? यस सर। ओके ओके, एनीवन कोई और एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा इस एरर का? और किस किस को समझ में आया? जो मुस्कान स्वाति ने कहा वो किस किस को समझ में आया? एक्सप्लेनेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है वो, ठीक है। और ये फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल का मतलब क्या है? जो फ्लोट होता है वो क्या है? आइटरेबल नहीं है। अगर आपको याद होगा मैंने x इक्वल्स टू 100 कहा था, मैंने कहा x ऑफ 0 करो तो ये क्या कहता है? x इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। रीजन इज है इट इज इंटीजर, इट इज नॉट आइटरेबल। तो इसीलिए वो आपको ये एरर दे रहा है, फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो मैंने बताया था वहां पे एरर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजें जॉट डाउन करके रखना। तो अब मुझे एरर दे रहा है तो लेट्स सी, मुझे वो एरर को पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोग्नोज। डायग्नोज कर लिया, देन वी हैव टू प्रोग्नोज। मैंने देखा ओके, लेट्स सपोज नल वैल्यूज, इसे क्या करते हैं? डॉट सम कर देते हैं, यानी पता चल जाएंगे कितनी मेरे पास मिसिंग। तो ये कह रहे 30 मिसिंग वैल्यूज है। कहाँ कहाँ पे? मैंने इंडेक्स भी पता कर लिया, ठीक है। तो मैंने वो डेटा ही बाहर उसे निकालने का कोशिश करते, यानी मेरे पास ये मिसिंग है, ठीक है, मैंने उस डेटा को ही बाहर निकाल लिया। दैट्स अ क्यू, दिस इज माय क्यू डेटा। तो मैंने उस डेटा को ही बाहर निकाल लिया जिसमें मेरे केबिन में मिसिंग वैल्यूज हैं। तो यानी हम एक और डेटा बना सकते हैं नॉन मिसिंग का, तो मैंने उस नॉन मिसिंग का डेटा बना लिया, ठीक है। दिस इज माय नॉन मिसिंग डेटा। अब ये किस किस को समझ में नहीं आया? दैट्स अ पार्ट। वेट 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 वेट, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ क्या? दैट्स अ नॉन मिसिंग, कहाँ? ओ सॉरी, मैंने यहाँ जो कुछ और चाहिए था मैंने वो ले लिया। दैट्स अ ए, ठीक है। मेरे पास अब क्या गया? नॉन मिसिंग का। अब ये किसको समझ में आया और किसको, जो जिसने लास्ट क्लास लिया होगा उसे समझ में आया होगा, जिसने नहीं लिया उसे नहीं समझ में आया। किसको समझ में आया? एनीवन? क्या किया मैंने? यानी मैंने डेटा का सेग्रीगेशन किया, एक मिसिंग डेटा बना लिया, उसकी अलग से एनालिसिस कर लेंगे, एक नॉन मिसिंग का डेटा बना लेते हैं, उसकी अलग से एनालिसिस करते हैं। अब ये कैसे किया? इट्स वेरी सिंपल। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। मैंने बहुत सारे तरीके शायद आपको लास्ट क्लास में बताए भी होंगे। कोई बताएगा मैंने कैसे किया ये? एनीवन? सबको समझ में आया ना? पहले ये बताओ, ये यस और नो? क्या किया? समझ में आया? हाँ ना बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, मुस्कान को समझ में आया। अक्षिता, अमित, मे बी, आई डोंट नो। सर इसमें तो लॉक लगा है ना सर, लॉक फंक्शन लगा के हम फाइंड आउट कर लिए। मुझे नहीं पता, मुझे बस ये बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? ये सर, ये सर। अक्षिता, पूजिता, पूजिता आपने शायद लास्ट क्लास मिस किया था ना? ग्रेट, ठीक है ना? तो फिर मैंने सिंपली उस डेटा को लिया और इसमें ये किया। नाउ यू कैन यूज दैट पार्ट। अब आप क्या कर सकते हो? जो मेरा ये डेटा क्रिएट होके आया है क्यू नॉ, ये इस डेटा को लेके हम लोग वर्क कर सकते हैं, है ना? अब वर्क करने, लेट्स सपोज मैंने कहा ठीक है, दैट्स अ क्यू नॉन। एक क्या करते हैं, एक नया फीचर बना लेते हैं, है ना, इसके अंदर। तो इसे कह देते हैं न्यू, दैट्स अ केबिन। इट्स सिंपल। मैंने कहा किसके अंदर बनाना है? सॉरी, इट्स अ क्यू नॉन, then I have to just under queue none, and then there is a cabin dot apply, and then lambda of x, and इसे कैसे ले सकते हैं हम? इट्स सिंपली 0, ठीक है। इस तरह से मैंने एक नया फीचर बनाया, and then I call it queue none. Where is my data? ठीक है। अब इसका एडवांटेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो नया फीचर आया है एनालिसिस करने में? अक्षिता, आपने इस पे कुछ ऐसा कोई फीचर बना के किया था, एक्स से इंफॉर्मेशन निकाला आपने जो रिपोर्ट बनाया है? या नहीं? अच्छा, एक कोई मुझे रीजन बताओ, ये जो केबिन है ना 85 123 C103, इससे आप समझ क्या रहे हो? क्या समझ में आ रहा है?
आपको E46, अब ये सी क्या समझ में आ रहा है, मतलब कुछ बता सकते हो उसका क्या कनेक्ट कर पा रहे हो अगर आपसे पूछा जाए उस डेटा के लिए तो? या मुस्कान? Sir, it is the like we say first floor, second floor, third floor. ग्रेट So by this number, if A is, I think it's the first floor, B second, and so on. ग्रेट, सो मीन्स दैट हर एक फ्लोर पे ABCDEF में फ्लोरिंग सैग्रीगेटेड थी टाइटैनिक में, और सी फ्लोर पे लेट्स सपोज कुछ रूम नंबर्स थे C85, C123, C23, C25, C27, जितना भी डेटा आपके पास आ पाया, C103, तो ये रूम नंबर है उस पर्टिकुलर फ्लोर के। देन E46, तो हमें रूम नंबर से इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए ना, हमें तो केबिन वाइज चाहिए, क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर मेरा शिप सिंक करता है तो मुझे वो देखना है कि किस फ्लोर पे ज्यादा ट्रेजेडी हुई है या किस फ्लोर पे ज्यादा डेथ हुई है। नाउ यू कैन जस्ट डू मोर एनालिसिस। तो आपने क्या किया, यही दैट्स अ काइंड ऑफ डेटा साइंस। क्या आप डेटा से जब कनेक्ट कर जाते हो, व्हेन यू जस्ट कनेक्ट विद योर डेटा, देन यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन, यू कैन क्रिएट न्यू फीचर्स आल्सो। दैट्स अ काइंड ऑफ डेटा साइंस। इसे ही डेटा साइंस कहते हैं, बाकी सब डेटा साइंस नहीं होता है। मशीन लर्निंग अप्लाई कर दिया, प्रेडिक्शन निकाल दिया, और रियली अगर आपने कर भी दिया, एक्यूरेसी में भी यू गेट 90%, वो एक्यूरेसी 90% का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इसलिए मतलब नहीं क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो तो आपने छोड़ दी पीछे। अब इसके संग आप एक अलग से अपना डेटा क्रिएट करके, फीचर क्रिएट करके, तब आप अपना मशीन लर्निंग अप्लाई करोगे, तब आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी क्योंकि वो जो आपको मिलता है ना मैथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट्स अ काइंड ऑफ 90% सेंसिटिविटी आ गई, स्पेसिफिसिटी आ गई, वो एक्यूरेसी नहीं होती। एक्यूरेसी होती है जब आपका क्लाइंट चेक करता है, और उस जब टेस्टिंग होती है प्रोडक्शनाइज करने के बाद, तो ये फैक्ट है, अगर आपने अच्छे फीचर्स क्रिएट किए हैं तो डेटा के अंदर वेरिएंस कम आएगा और मॉडल आपका अच्छा आउटपुट देगा क्लाइंट को। तो दैट्स या मुस्कान? Sir, is it a dummy data or real time data of Titanic? डमी, दिस इज द रियल डेटा, बट द रियल डेटा वहां से कुछ इंफॉर्मेशन जो मिल पाई उनकी इंफॉर्मेशन है टाइटैनिक की। अच्छा, मतलब this is real but it is a part of the data. हाँ, पार्ट ऑफ द डेटा, या Okay. Sample. इट्स अ सैंपल काइंड ऑफ डेटा, या ठीक है। तो ये इस टाइप की, अभी तो ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आगे जो डेटा आएंगे वो बहुत गंदे डेटा आएंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेटा साइंस कहते किसने, लेकिन वो तभी कनेक्ट कर पाओगे जब ये चीजें आपको पता होंगी। और यही डेटा साइंस है, बाकी कुछ भी डेटा साइंस नहीं होता। बाकी सारा पार्ट इसके बाद बहुत इजी वाला पार्ट आ जाएगा, फिर वो फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन और ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीचर इंजीनियरिंग यही वाला पार्ट है जो अभी हम कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन डू। इसी तरह आप डिफरेंट क्या कर सकते हो, और भी एनालिसिस कर सकते हो। अभी पंडास खत्म नहीं हुआ, कल खत्म होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने, अच्छा अब इसका कोई मुझे बताएगा इस कोड का क्या मतलब है? या मुस्कान? So it will store the maximum value of the fare, which it will take out from fare column and store it in the max fare column. Okay. Okay. Or anyone? So let's suppose if I'm using np.where, through this function, am I store columns or not? Am I able to store my columns? No, sir. The value. The value of the row. Yes, sir. Row which is related to the corresponding of your column, which is fare, वहां पे जाएगा और चेक करेगा कहाँ पे टाइटैनिक ट्रेन का फेयर मैक्सिमम है। तो वो आपको उसने ये दो रो दे दी, 27 रो और 88 रो पे मैक्सिमम फेयर आ रहा है, ठीक है। तो वो दोनों सेम ही है, क्योंकि देखो आप फेयर पे जाओगे तो यानी ये दो पैसेंजर्स ऐसे थे जिन्होंने मैक्सिमम फेयर पे किया है, तो ठीक है, हमने उनका डेटा को निकाला और ये दो पैसेंजर ये रहे। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाता है, if the client is asking that question, you have to find those passengers who paid maximum fare and just tell me whether they survived or died. Then you can just fetch the information
क्या देखो यहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है दोनों से। पैसेंजर आईडी सर्वाइव्ड, ये नॉट डाइड, सर्वाइव्ड, फर्स्ट क्लास, फॉर्च्यून, दैट्स अ नेम, इट्स अ चार्ल्स एंड द मैबल, there's a sex, male and female, age is 19 and then age is 23, that's a kind of 3, 2 is a sibling spouse and the parents children, ticket number is 9950, fare is this one, cabin is this one, and the embark point is S. So means that there is a relation between, maybe ये couple हो सकते हैं, है ना, it's a Charles Alexander and the Mabel Helen, मे बी ये कपल हो सकते हैं, और जिसमें से कपल में से आई एम जस्ट सिंपली प्रेडिक्टिंग दैट पार्ट। तो मैं ये दे रहा हूँ कि मेबल के जो स्पाउस हैं वो डेथ कर गए। गॉट इट? तो इस तरह से हम उसकी एनालिसिस निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो सिंपली किससे, पाइथन के रोल से आप इस तरह की एनालिसिस कर सकते हो। देन मैंने एक नया फीचर बना लिया कि आप एक फैमिली का बना लेते हैं, सिबलिंग, स्पाउस एंड पेरेंट्स चिल्ड्रन को, देन यू कैन डू दिस काइंड ऑफ स्टफ आल्सो। आप इस तरह से ये कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से फैमिली देखते हैं कि मोस्ट फैमिली किसका है, तो ये मुझे पता चला 2 पैसेंजर्स हैं जिनका फैमिली में सबसे ज्यादा मेंबर्स बोर्ड कर रहे थे, तो दैट्स अ फैमिली, और 0 यानी कोई भी नहीं बचा। अब यहाँ पे एक ना बहुत प्यारी सी इंटरेस्टिंग एनालिसिस जब आप लोग करोगे ना तो आपको दिखाई देगा दैट बेसिस ऑन द क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, और देन यू कैन फाइंड द डिस्क्रिमिनेशन that happened when that ship was sinked। तो वो discrimination देखना, वो that data tells very beautiful thing। तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा that's a part which is maybe is the kind of prejudice that happened at that means हुआ होगा, I don't know, I am just simply saying basis on this data। तो आप इस तरह की जब एनालिसिस करोगे तब आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। क्या लेट्स सपोज कौन से एम्बार्क पॉइंट से पैसेंजर ज्यादा सर्वाइव हुए, कौन से क्लास के पैसेंजर सर्वाइव हुए। लेट्स सपोज इफ there is a discrimination basis on the gender also, there is a discrimination basis on the classes also, that discrimination had happened when the ship was sinked। so that's kind of analysis you can do, that's a यही जो part होता है वही वो kind of intrinsic approach you have to use। अब ये मैं आपको नहीं सिखा सकता, really नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये आपका अपना ओन इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी है, आप खुद ही इस पे कर सकते हो, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ कोडिंग बता सकता हूँ। डेप्थ एनालिसिस आप खुद को करना होगा, वो इसीलिए वो डेटा साइंस का जो रोल होता है विच इज ऑल अबाउट डायनामिज्म, कि एक सेम दोनों बंदे हैं मुझसे ही पढ़े, एक को इन्फोसिस में जॉब मिल रहा है अर्निंग अराउंड 12 लाख रुपीज, एक को जॉब ही नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो दोनों सिनेरियो है मेरे पास। और जबकि जिसको जॉब मिला शी इज गर्ल, और उनके पास तो कोई बैकग्राउंड मींस काइंड ऑफ कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, मींस रिलेटेड टू द कोडिंग। और एक और देयर इज अनदर कैंडिडेट, आई टेल यू, ही इज वर्किंग इन EY नाउ। तो अगेन दैट्स अ पार्ट, तो वो आपको डिपेंड करता है। क्या बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बैकग्राउंड नहीं था, नाउ दे आर वर्किंग इन वेरी गुड कंपनी। आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज ऑफ मी, नो, आई एम नॉट इवन आई डिडंट कंट्रीब्यूट 1% इन टर्म्स ऑफ देयर सक्सेस, बट वो उन्होंने खुद ही किया, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद किया। तो वो क्योंकि उनका अपना हार्ड वर्क है, उन्होंने अपने आप ही एनालिसिस की। हाँ, बस ये होता था कि मैंने कहा ये करना, तो करते थे। क्योंकि अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो करो, तो मीन्स दैट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जब आप करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड। जो रिपोर्ट वाला पार्ट है ना कि डी में आपको KPIs फाइंड आउट करनी है, जब आप KPIs निकालने बैठोगे ना, दैट्स अ काइंड ऑफ पी एवरी डेटा। जब भी हम डेटा पे आते हैं तो उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव, व्हाट्स द स्कोप ऑफ दिस डेटा, why there is a need to resolve this problem, if this problem is really evitable or not for the society। तो ये सब करना पड़ता है, और ये अगर अभी कर रहे हो तो मीन्स दैट व्हेन यू जस्ट सिंपली लैंडेड इन योर कंपनी और जस्ट सिंपली वर्किंग in your company, then you can just show yourself as an experienced one।
तो वो आपको हेल्प करेगा, आप ऐसा फ्रेशर नहीं जाओगे, इंटरव्यू में आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो इन दिस वे। तो वो आपको हेल्प किस में करेगा, आपकी रेम्यूनरेशन पार्ट में, आपकी प्रेरोगेटिव्स में हेल्प करेगा कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करो ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। दैट्स अ पार्ट, गॉट इट एवरीवन? तो प्लीज प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये डेटा मैंने, अब ये सब चीजें मैं सब करा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ये सब मैं करा चुका हूँ कि ये डेटा के फीचर्स को सॉर्टेड किया और फिर उसको मैंने अरेंज कर दिया। मैंने ये पार्ट स्पेशल पंडास में ही बताया कि मुझे फीचर्स को अगर सॉर्टेड करना है तो कैसे कर सकता हूँ। ये मैंने लास्ट क्लास में सब कराया था आपको, ठीक है। हाँ, अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया ये और बता देता हूँ मैं आपको। देयर इज अ मैप, यहाँ पे मैंने सर्वाइव में एक डिक्शनरी क्रिएट करी कि अगर 0 है, ठीक है, तो उसे डाइट क्रिएट कर दो और 1 को सर्वाइव। तो एक न्यू फीचर क्रिएट किया, न्यू, ठीक है, टाइटैनिक के अंदर, और सर्वाइव से मैप किया। तो मैंने कहा 0 को डाइट कर दो, जिससे मैं डाइट और सर्वाइव पे भी एक एनालिसिस कर पाऊं, ठीक है। अगर मुझे इस टाइप की एनालिसिस करनी है तो हाउ मे आई डू इट? तो सिंपली एक न्यू फीचर है डाइट सर्वाइव। नाउ देयर इज अ वन कोड व्हिच इज अ पीडी क्रॉस टैब। ये इसे हम थोड़ा सा ना, अभी मैं आपको बस एक ग्लैंस दे रहा हूँ, कल हम इसे थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली पढ़ने वाले हैं। क्रॉस टैब को, पिवट टेबल को, ठीक है, ग्रुप बाय को, ये सब हम बहुत उसे थोड़ा सा देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे। तो मैंने कहा पीटी डॉट क्रॉस टैब, दैट्स अ क्लास एंड दैट्स अ सर्वाइव्ड, दैट मार्जिन ट्रू। तो ये क्या करेगा, आपको ये बताएगा किस क्लास में कितने लोग सर्वाइव हुए, कितने लोग डाइड हुए, आपको ये बता देगा ये। So here you can see, I can say new one, new में died and survived है ना, new ले लेते हैं। तो देखो आपको ये शो कर रहा है, फर्स्ट क्लास में 30 में से 18 डाइड हुए, 12 सर्वाइव्ड फर्स्ट क्लास में। थर्ड क्लास में से 96 में से 68 डाइड हुए और 28 सर्वाइव्ड। एंड देन दिस वन, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, दैट्स अ पी क्लास, एंड इन द पी क्लास आई कैन से made a mistake there. So there's a P class. Yeah. Let's suppose if I'm taking then another value, it's a Titanic. Okay, wait, I'm just showing that way, in this way. So let's suppose if I just take that data in this way, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस तरह से अपने डेटा को लेना चाहता हूँ। यानी मैंने कहा कि डाइड एंड सर्वाइव में मैंने कहा ठीक है, पहले मेल एंड फीमेल का कंपोजिशन देख लेते हैं कि मेल एंड फीमेल का कंपोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे हम इस तरह से वर्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप ये कंपोजिशन देख पा रहे हो तो कोई बताएगा क्या कंपोजिशन है इसका, या एनीवन? कोई कंपोजिशन बताओ इसका, एनीवन? Sir, in this, it has taken gender as the row label and died and survived as column label. And in the last rows and the column, we have the total of rows and columns. बट And इससे एनालिसिस क्या फाइंड आउट करोगे? हाँ, तो out of total females, we have total 56 females, and out of which 40 survived and 16 died. Okay. So we can find its cumulative frequency also, that 40 out of 56, मतलब जो percentage आएगी, that many females, 40 out of Okay. 50, हाँ 40 out of 54, I don't know, वो देखना पड़ेगा. And then we can find out that out of 100 males, 86 died and 14 survived, and then we can find its cumulative frequency and all. ठीक है,
अब यहाँ पे क्या था, मेरे पास डाइड एंड सर्वाइव के, यानी मुझे पता चला कि लेट्स सपोज कि अगर मुझे देखना है कि फीमेल का जो रेशियो है वो डेथ का कम है, ठीक है, और मेल का रेशियो डेथ का ज्यादा है, तो लेट्स सी, मैंने कहा ओके मेरे पास एक फीचर है पी क्लास, तो पी क्लास को भी देख लेते हैं एक बार। देयर इज अ पी क्लास। अब पी क्लास में आपको शो कर रहा है कि पी क्लास में 30 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे, सेकंड क्लास में 30 पैसेंजर और 96 थर्ड क्लास में, यानी थर्ड क्लास में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे। नाउ दिस इज योर ओन पार्ट, दिस इज योर एनालिसिस पार्ट, कि इस थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग ना फेयर को देखना कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो मैं कह रहा हूँ कि इज दैट पर्टिकुलर पार्ट रियली सेग्रीगेटेड बेसिस ऑन द फेयर और नॉट, ठीक है, दिस इज योर वर्क। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है ओके 30 क्या हुआ, 18 डाइड हुए, 12 सर्वाइव हो गए आउट ऑफ 30। मैंने कहा ठीक है, मुझे पी क्लास का पता चल गया और सेक्स का पता चल गया, यानी मेल एंड फीमेल का। मैंने कहा ठीक है, क्या हम ऐसा भी देख सकते हैं कि पी क्लास में कितनी मेल्स ट्रेवल कर रही थी, सॉरी कितनी फीमेल ट्रेवल कर रही थी और कितने मेल, और उनमें से कितनी मेल, कितनी फीमेल और कितने मेल डेथ किए। तो लेट्स सी, मैंने कहा ओके देयर इज अ पी क्लास and then there is a Titanic underscore train, and there is another, which is this one. Okay, so let's see. तो देखो यहाँ पे आपके पास ये एनालिसिस आ गया। तो यहाँ पे एनालिसिस क्या दिख रहा है, जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर, यानी फर्स्ट क्लास में एक भी फीमेल का डेथ नहीं हुआ है, 9 फीमेल ट्रेवल कर रही थी और 9 की 9 सर्वाइव हुई फर्स्ट क्लास में। वहां पे अगर हम थर्ड क्लास में देखें तो 35 फीमेल्स ट्रेवल कर रही थी, 15 डेथ हो गई एंड 20 सर्वाइव हुआ। और मेल का रेशियो देखें तो थर्ड क्लास के मेल को मारा गया है, मतलब दैट्स नॉट काइंड ऑफ इंसिडेंट और द एक्सीडेंट, दैट वाज मर्डर मे बी, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ इस टाइप का आप एनालिसिस निकाल सकते हो, है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप की एनालिसिस आप देख सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब बेसिस ऑन द एज ऑल्सो यू कैन सी, बेसिस ऑन केबिन, देयर इज अनदर फीचर व्हिच इज केबिन, तो आप केबिन के बेसिस पे भी कर सकते हो, है ना, दैट्स आई कैन से। इसके अंदर एक फीचर कर देते हैं हम, पता नहीं वो क्या है, शायद केबिन था, क्या था मुझे याद नहीं, अब वो आप करते रहना, ठीक है। इस तरह बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हो। दैट्स अ ग्रुप बाय मीन, ग्रुप बाय, मैंने कहा ओके ग्रुप बाय पी क्लास फेयर के मीन के अकॉर्डिंग। तो ये बता रहा है आपको, ये एनालिसिस जो मैंने अभी पूछा था वही एनालिसिस है कि फर्स्ट क्लास का फेयर था $79, सेकंड क्लास का 23 एंड $13 फॉर फर्स्ट थर्ड क्लास। तो मैंने कहा ठीक है, इसका ग्रुप बाय करके मुझे डिस्क्राइब समरी दे दो, तो ये आपको डिस्क्राइब समरी भी दे रहा है। तो इस तरह से आप उस पर वर्क कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैंने कहा मुझे ये हम कल करेंगे, ठीक है, ग्रुप बाय और ये पीवी ये सब करेंगे, डोंट वरी। तो ये फेयर, यानी अगर मैंने कहा कि मेल से फर्स्ट क्लास के अंदर जो फेयर आया विच इज $1440, ठीक है, और दैट्स अ पार्ट। ऐसे इस तरह आप मेल का भी देख सकते हो और फीमेल थर्ड क्लास में भी देख सकते हो, जो मेल डेथ किया है उनके पास से मेरे पास टोटल 639 कॉन्ट्रीब्यूशन आया था डॉलर्स का, ठीक है, और जो सर्वाइव किए उनके पास से 122, यानी उनका बहुत कम रेशियो रहा था। और जो फीमेल जो मेल डेथ किए हैं दैट्स अ पार्ट विच इज रिलेटेड टू 134, और जो सर्वाइव्ड कर गए हैं वो, और जो डेथ किया विच इज 1440। तो यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये कल हम करेंगे ग्रुप बाय एंड पीडी क्रॉस स्टेप, कल जो हम करेंगे वो दोबारा से पंडाल शुरू करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट वे, बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके अंदर, पिवट कैसे बनाते हैं, ग्रुप बाय कैसे करते हैं, दैट्स मेल्ट कैसे करते हैं डेटा को, ठीक है, ज्वाइन कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर मुझे फिलिंग करना है कुछ रिलेटेड टू, जैसे ना अभी ना दिखाऊंगा कल मैं कुछ प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा जो हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शंस को अप्लाई करना पड़ता है डेटा क्लेंजिंग के लिए। तो वी विल डू दैट पार्ट, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। या एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार, दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा मैनिपुलेशन। तो ये पार्ट आपका अपना है। नाउ इट्स योर वर्क टू जस्ट राइट अ रिपोर्ट ऑन द Titanic डेटा सेट इन द फॉर्म ऑफ DMAC। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा, मे बी अगर आपको नहीं पता है तो देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर कलीग।
जैसे अक्षिता ने दिया, आई डोंट नो अक्षिता ने डीमैक पे दिया है कि नहीं दिया है। द थिंग इज दैट कि अगर जिसको पता है देन आप पूछ सकते हो उससे और फिर उसका हेल्प लेके आप बना सकते हो। Yeah, anyone having any doubts so far? Would you like to ask anything? Then you can. Yes, please. Any doubt? Akshita, Amit, Muskan, Pujita, Suraj and Swadhin. No, sir. चलो, okay, bye, take care. ठीक है, बाकी Okay, sir. Thank you. Okay.